from that the dietary management. Okay, so obviously about the disorders which are of the non-nutritional origin. Okay, so yes, you can join Aruna Vasoya. Okay, so that's the yes. So that's the non-nutritional origin. That means the diseases of the gastrointestinal tract. Okay, the problems with the stomach and the esophagus, because these are some infected diseases. Okay, so this is from the infection and all. This is not the non-nutritional, because yesterday we have discussed, if you really you can see that we have actually discussed about the deficiencies. Okay, so over. Okay, so over excess of everything, we eat like the diabetes and the coronary artery disease, and the first of all we have discussed the deficiency. And the now we have to discuss, sometimes we get disease, so that we have to manage about our you can say that you can actually have to manage your, then also you have to manage your the dietary patterns only. If you have the gastrointestinal diseases, like if you have something eaten badly, okay, so you have to you have a diarrhea or the stomach infection, like any other kind of the gastrointestinal acidity and other things also, then also you have to manage it by the diet only. Okay, you have to do the modifications also. Okay, so you have to do the modifications, and then so the problems with the small intestine and the colon too, or sometimes the malabsorption syndromes, like you actually eat something which is very healthy, but if you have some problem with the stomach and other things also, so you are not getting absorbed. Okay, so whenever you won't get absorbed, so the things, okay, the food that won't get absorbed, so so at that time you have to actually manage the things with the dietary habits also. Okay, so these are some kind of the, which is not actually the nutritional diseases. Like if you don't eat, you, if you haven't eaten anything, or if you haven't eaten more, okay, ऐसी चीज नहीं है कि आप कुछ अपनी डाइट में कम ले रहे हैं या फिर कुछ अपनी डाइट में ज्यादा ले रहे हैं, ओवर एक्सेस से डिजीजेस हो रही हैं, सो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, ये ऐसी चीजें हैं कि whenever you are eating, so something bacteria, viruses and other things also, which we have actually studied in the previous chapters here in these lectures only, so you get infected. Okay, and sometimes there could be some other problem with the digestion also, or with the enzymes also, that even if you are eating, okay, even if you are eating good, then also the things, whatever the proper diet, whatever the multivitamins or the minerals or the carbs or the lipids or the proteins, even they are not getting absorbed. Okay, they are not getting absorbed properly. So you have to. So then also because of the malabsorption, there is no eligibility. I mean, availability of those ingredients which you are taking. Otherwise, you are thinking that you are eating actually the uh, proper the diet with the ingredients, and you have included each and everything, but you don't know whether that's getting absorbed in your body or no. Okay, there might be some big problem, then only you can come to know, but those malabsorptions would be appearing some time later. Okay, whenever you would be actually observing those the deficiency disorders. Okay, so यहाँ पे deficiency disorders आएंगे, but after some time, so then you have to realize that you are eating everything healthy, but that is not actually getting absorbed. So okay, so these are the things which actually I mean, gives the problem, because just because of the absorption, or sometime the some problems with the infection with the stomach, esophagus, intestine, or with the colon also. Okay, sometimes the problem is with the liver enzyme, sometimes with the gallbladder bile secretion, sometimes with the pancreatic secretions only. Then you don't get absorbed, because all these actually organs which are actually associated, because this is the stomach. Whenever you eat something, आप अंदर की पिक्चर देखिए। ठीक है, आप सीधा सीधा समझिए कि whenever you want to eat anything, आप you are taking food. Okay, so you from mouth, from the esophagus, that goes to the stomach. अब stomach यहाँ पे है, ये मैं ऐसी पिक्चर बना के आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, stomach यहाँ पे है,
तो इसके आसपास क्या है, एक तो गॉल ब्लैडर है, एक है लिवर और एक पैनक्रियास, तीन लोग एसोसिएटेड हैं जो स्टमक के साइड साइड पे ही होते हैं, ऊपर ही होते हैं लेटेस्ट, ओके, एक इधर को होएगा, एक ऊपर है, एक ऐसे है, ये स्टमक के आसपास है, दे आर एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। गॉल ब्लैडर ने भी कुछ बाइल सीक्रेट करनी है विच आर एसोसिएटेड विद एंड विच आर एक्चुअली नीडेड फॉर द डाइजेशन। एंड उसके बाद ऊपर लिवर है, लिवर वुड आल्सो गिव द liver juices, and along with the juices there would be the enzymes, okay, liver marker enzymes, liver enzymes, SGOT, SGPT, alkaline phosphatases and all, and other enzymes which are detox enzymes, also antioxidant enzymes are also there, and some specific enzymes for specific digestion of your which is the micromolecules you have eaten, okay. And then there would be the pancreas, okay, pancreas also secretes biles, and then which bile there are pancreatic enzymes also, like there are insulin hormones also, insulin also, glucagon also, and other two peptides are also, and then the pancreatic enzymes are also there, okay. And then there would be the secretion of the HCl also in the stomach whenever you eat, and there are so many enzymes present in the stomach also, okay. So all these things, okay, stomach है, उसके साथ liver है, gall bladder है, liver है, and then pancreas है, ये बहुत associated organs हैं। अगर इन organ ये एसोसिएटेड ऑर्गन है, सो विच हेल्प्स इन द डाइजेशन, अगर इनमें भी कोई दिक्कत आती है, किसी एक में भी आती है और थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, देन यू विल फील बड़ी दिक्कत, बड़ी चीजें अगर सिक्रीट नहीं करते हैं, बिल्कुल ही गॉल ब्लैडर जवाब दे गया, लिवर बिल्कुल एंजाइम सिक्रीट नहीं कर रहा है, पैनक्रियास भी ख्याल नहीं रख रहा है, उनको भी दिक्कत आ गई है, तो यू विल बी हैविंग सम गुड बिग ह्यूज प्रॉब्लम्स टू, ठीक है। अगर थोड़ी दिक्कत है तो थोड़ी दिक्कत ही आएगी डाइजेशन में, अगर बहुत बिल्कुल ही एंजाइम्स एंड ऑल सब कुछ डिफरेंट ही हो गया, हो ही नहीं रहा है सिक्रीट, बिल्कुल ही लैक है, डेफिशिएंट है बिल्कुल ही, तो आपको और भी ज्यादा दिक्कत आएगी। जितनी ज्यादा एंजाइम का अमाउंट, अगर थोड़ा अमाउंट एंजाइम का सिक्रीट हो रहा है, सपोज लिवर मार्कर एंजाइम्स है, लिवर एंजाइम्स है, या हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, ठीक है, वो हार्मोन देगा, लिवर एंजाइम्स देगा, इधर से बाइल आएगा, सारे सबका अपना अपना एक फंक्शन है। स्टमक में खाना जाएगा और वहां पे भी एंजाइम्स हैं, ओके। some enzymes are in inactive form and some enzymes are in active form, जैसे zymogen form में है, पेप्सिनोजन है, वो पेप्सिन फॉर्म में आएगा, ओके। सो दैट वुड बी एक्चुअली zymogen फॉर्म है, zymogen zymogen फॉर्म है ना, पेप्सिनोजन इज एन inactive form, then वो that would be getting active, ओके, पेप्सिन की फॉर्म में, पेप्सिन फिर एक्टिव हो जाएगा, ऐसे ट्रिप्सिनोजन है, वो इनएक्टिव फॉर्म है, whenever you eat that enzyme would be coming into the active form which is called the trypsin। इस तरह के बहुत ज्यादा एंजाइम्स है, ये मैं आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। सो दीज आर द एंजाइम्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द digestive system, okay। They I have to digest your food items and all, okay। So whenever we have these kind of the items and then we get select these items, whenever we get these, okay, so these things would be actually giving you proper digestion whenever they are working fine, okay, along with the bile coming from the gallbladder, enzymes coming from the liver, and pancreatic juices providing you the hormones। देखो bile, enzymes and hormones तीनों चीजें चाहिए, तो स्टमक में भी जो इनएक्टिव एंजाइम्स होंगे, ठीक है, ट्रिप्सिनोजन ट्रिप्सिन, पेप्सिनोजन पेप्सिन, इस तरह के और भी, ठीक है, तो वो भी वहां एक्टिव हो जाएंगे। और एंड में आपको ये बताऊं कि एवरी मॉलिक्यूल व्हाट वी ईट, ठीक है, अगर हम कार्ब्स को इफ वी टेक द कार्ब्स एंड लिपिड्स एंड मॉलिक्यूल, हमें हमेशा कहा जाता है कि यू हैव टू टेक द बैलेंस्ड फूड, ओके। whenever you take the balanced food में क्या है, कार्ब्स होंगे, लिपिड्स होंगे, प्रोटीन्स होंगे, मिनरल्स होंगे, विटामिन्स होंगे, रफ रिच वाटर एंड ऑल एवरीथिंग। सो जो हमारे कार्ब्स हैं वो हम अगर सारे मतलब कॉम्प्लेक्स कार्ब्स नहीं ले रहे हैं और हम डाइसेक्राइज मोनोसेक्राइज ही ले रहे हैं, तो सबके लिए क्या है, एक स्पेसिफिक एंजाइम है। अगर आप लैक्टोज ले रहे हो तो लैक्टेज एंजाइम है, सुक्रोज ले रहे हो सुक्रेज एंजाइम है, ठीक है, और किसी भी तरह का माल्टोज ले रहे हो माल्टेज एंजाइम है, ग्लूकोज ले रहे हो ग्लूकोकाइनेज है, हेक्सोकाइनेज है, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ द एंजाइम्स दे आर वेरी स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट। ऐसा नहीं है कि सारे कार्ब्स के लिए एक ही तरह के एक ही एंजाइम है, नो, दैट देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ द एंजाइम्स एंड देन डिफरेंट काइंड ऑफ द कार्ब्स। सो इसी तरह से लिपिड्स है, लिपिड्स आर वैरायटी ऑफ, आप लेते हो तो उसके बाद वो ब्रेक डाउन करके स्मॉलर constituents में, and then the specific enzyme they start working upon,
इसी तरह से मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, ठीक है, ये और प्रोटीन्स हैं स्पेसिफिकली, ठीक है। तो प्रोटीन्स का क्या होगा कि प्रोटीन्स भी स्पेसिफिक है, किस तरह का प्रोटीन आ रहा है उसके ऊपर स्पेसिफिक एंजाइम वुड बी वर्किंग अपॉन। सो जब आप खाना खाते हो ना, बैलेंस फूड है, वैरायटी काइंड ऑफ अ फूड है, और वो बैलेंस्ड सिंपल फूड खाते हैं, तो आपकी बॉडी एक काम पे लग जाती है। आप इस बात को समझिए कि दैट वुड स्टार्ट वर्किंग अपॉन, ठीक है। एक फौज आ जाती है एंजाइम्स की पूरी भर के, क्योंकि वो दैट हैज टू वर्क अपॉन अ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। क्योंकि आप कितना कुछ खा रहे हैं, तो हर किसी तरह का कार्ब्स भी कितनी तरह के लिए, प्रोटीन्स भी कितनी तरह के लिए किसी फूड में, ठीक है। और हर तरह के अमाइनो एसिड पे, हर तरह के प्रोटीन के बॉन्ड पे, अगर फैटी एसिड्स हैं वो किस तरह के हैं, सैचुरेटेड बॉन्ड पे, अनसैचुरेटेड बॉन्ड पे। So there would be a lot of number of enzymes would be started working whenever you start having that food, okay। So ये चीजें जब आप लेते हो और कितने सारे एंजाइम्स वर्क करना शुरू कर देते हैं, और अब आप सोचो कि ये तो आप सिंपल खाने की बात करते हो, जब आप घर में खाते हो 2 फुल्के दाल सब्जी और ये बैलेंस्ड फूड खाया है, बट व्हेन what happens when you go to the parties, whenever you start piling up in your stomach, एक के बाद दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर के बाद चौथी लेयर के बाद, और एक तरह की ड्रिंक के बाद दूसरी तरह की ड्रिंक के बाद आप इतनी पाइलिंग अप कर लेते हैं, ओवर ईटिंग भी होती है उन दिनों में। जैसे फंक्शन में जाओगे, यू हैव अ क्रेविंग, बिकॉज हमने जाके क्या करना होता है कि कितनी तरह की आपके पास वैरायटी बनी है, सारी की सारी खा के देखेंगे हम तो, है ना। चाहे थोड़ी खाएं ज्यादा खाएं, यू डोंट थिंक अबाउट योर अबाउट योर स्टमक, ओके, अबाउट योर डाइजेस्टिव सिस्टम, आप नहीं सोचते हो। और कितनी तरह की चीजें, वेटर निकला है सामने से तो आपको क्रेविंग होती है, ये भी देखना है वो भी देखना है, वेज भी है नॉन वेज भी है, कॉफी भी है, ड्रिंक्स भी है, ठंडा गर्म सब कुछ, मैदा भी खा रहे हैं आप, मल्टी मल्टी वाला भी खा रहे हैं, जैसे वहां पे आपका शादियों में मल्टी वाइटामिन, सॉरी मल्टी ग्रेन आटा भी सब मिल रहा है, ठीक है। तो आप हर तरह का फूड आप खा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें कौन कौन सी वैरायटी के कार्ब्स हैं, कौन सी वैरायटी के लिपिड्स हैं, कौन सा ऑयल यूज हो रहा है, कौन से प्रोटीन्स आप खा रहे हैं, और किसके बाद कुछ खाना है नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हैं, हार्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हैं, मतलब वट एवर यू विश टू हैव इट। आप अपने अंदर का तो कुछ देख ही नहीं रहे हैं ना, एक लेयर थी दूसरी लेयर थी, फिर देन यू वेट फॉर सम टाइम एंड देन फिर स्नैक्स के बाद मेल मिल, आप ये देखिए कि आप इतनी पाइलिंग अप कर देते हैं, और उसके बाद आके क्या करते हैं, ठीक है। उस दिन क्या होता है कि वैसे तो आपको देखो बॉडी भी तो हैबिचुअल होती है ना, आपको अगर किसी दिन थोड़ा काम करते हो ज्यादा काम करना पड़ जाए, तो इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर यू पीपल, बिकॉज ये दिक्कत तो आती है ना कि एक बंदे से आप थोड़ा सा काम करवा रहे हैं, रूटीन का काम करवा रहे हैं, और एक बंदे को कभी 4 बंदों का 5 बंदों का काम करना पड़ जाए ना, तो उसको दिक्कत आती है। सो दिस इज द सिमिलर वे, वेन एवर यू वुड बी ईटिंग डेली, आपकी क्या आदत है, 2 फुल्के खाओगे 3 फुल्के खाओगे, दाल सब्जी रात को, है ना, शाम को वट एवर जब आप खाते हो, तो कितना खाते हो आप, वही रूटीन में आदत है। जिस दिन आप पार्टी में जाते हो तो जस्ट कंपेयर, आप 3-4 लोगों का खाना ओवर ईटिंग करते हो, तो उस दिन बॉडी के साथ क्या होता है फिर, ठीक है। बॉडी भी तो कुछ बोलेगी ना, ठीक है। उस दिन ऐसा तो कुछ नहीं है कि बॉडी आपको खाने से मना करती है, स्टमक कह रहा है कि, या च्यू करने से टीथ मना करते हैं, या स्टमक मना करता है कि नो द कैपेसिटी इज ओवर। जब तक आपकी ओवर ईटिंग नहीं होती, जब तक आपको खुद फील नहीं होता, आप हटते नहीं हो तब तक, ठीक है। मतलब इट्स नॉट यू, इट्स मी ऑल्सो, वेन एवर वी गो टू द मार्केट एंड एवरी वन, क्योंकि चीजें वहां होती हैं, एंड देन ये हो जाता है बिकॉज इट्स क्रेविंग एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, कि हमें खाना ही खाना, ठीक है। और खा के स्टमक भी मना नहीं कर रहा है, इंटेस्टाइन भी मना नहीं कर रही है, अनलेस एंड अनटिल के कोई इन्फेक्टेड हो जाता है आपकी चीज को, इंटेस्टाइन भी मना नहीं करती है, बॉडी भी एब्जॉर्प्शन को मना नहीं करती है। और सबका क्या एंड में बनेगा, आपको पता है कि वट एवर यू ईट एंड प्रोडक्ट वुड बी द ग्लूकोज, सबसे ज्यादा ग्लूकोज बनेगा, ठीक है। तो ग्लूकोज बन के कहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन से, दैट वुड बी कमिंग इनटू द सर्कुलेशन, इनटू द ब्लड। तो ब्लड में जब आएगा तो ब्लड से क्या होएगा कि ब्लड में ओवरफ्लो होता रहेगा, क्योंकि नॉर्मली डेज में आपने क्या किया, नॉर्मल डेज में आपने नॉर्मली ईट किया था, तो नॉर्मल अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज बनता है, विच यू एक्चुअली यूजुअली हैबिचुअल हो, उसके अकॉर्डिंगली आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो, यू गो फॉर अ वॉक, यू गो फॉर अ योगा एंड ऑल, ओके, आप सब खाते पीते हो। तो लेकिन जब आप ओवर ईट करते हो तो ग्लूकोज तो बन गया ना, अब ज्यादा बन गया, फिर ज्यादा ब्लड में भी पहुंच गया, क्योंकि उसने तो नहीं कहा ना कि इंटेस्टाइन ने तो कहा नहीं कि मैं डाइजेस्ट नहीं करूंगी, ठीक है, हाँ, मतलब किसी ने, तो वट एवर द हो रहा है तो हो रहा है, ठीक है। बट इट्स दी सेल, जब एंड में सेल में ग्लूकोज ने एंटर करना, सो दैट वुड बी एंटरिंग इनटू द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट,
जितना सेल के अंदर ग्लूकोज जाएगा ऑब्वियसली वहीं पे जाके ग्लाइकोलिसिस होना है, फिर आधा ग्लाइकोलिसिस का फेज साइटोप्लाज्म में होता है एंड हाफ ऑफ द ग्लाइकोलिसिस का फेज किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेनल स्पेस में। डबल मेम्ब्रेन होती है ना माइटोकॉन्ड्रिया की, एक बाहर होती है, अंदर वाली विलाई वाली होती है, तो इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस में सिट्रिक एसिड साइकिल भी होगा। हाफ ऑफ द पहले ग्लाइकोलिसिस होगा एंड देन दैट वुड बी एंटरिंग इनटू द सिट्रिक एसिड साइकिल एंड फिर वहां पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होगी। So this is how what we eat, then that would be with that help of that energy generation of that whatever we have eaten, if that gets digested properly and then the ATP molecules were generated and that would be used in the electron transport chain for breathing purposes। हम breathe ही तब करते हैं, ठीक है। तो इन चीजों को लेकर अगर आप सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि अब इतने एटीपी मॉलिक्यूल जितना ग्लूकोज अंदर एंटर करेगा, ठीक है, वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और जब तक वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, ठीक है, डाइजेस्ट नहीं होगा, पूरा का पूरा ग्लूकोज डाइजेस्ट नहीं होगा, कम नहीं होगा, तो अंदर कंसंट्रेशन ग्लूकोज की कम होगी, तब तक अंदर से जाएगा नहीं, बाहर से और नहीं जाएगा, मतलब पूरा का पूरा ब्लड में घूमता रहेगा ग्लूकोज, ठीक है। तो ग्लूकोज जब अंदर घूमता रहेगा तो ब्लड में, और वो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के बेसिस पे जब अंदर जाएगा और अंदर जितना ग्लूकोज अंदर गया एंड देन दैट वुड बी गेटिंग डाइजेस्टेड, ओके। सो अब अंदर कंसंट्रेशन कम हो गई तो फिर जो ब्लड में घूम रहा है और भी ज्यादा जो भी है ग्लूकोज, देन इट स्टार्ट एंटरिंग इनटू द सेल्स, ओके। सो अब अगर आप जब ओवर ईट करके आए हो, लेट भी आए हो और सुबह भी लेट उठ रहे हो, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी तो जीरो हो गई, तो ग्लूकोज खर्च कैसे होगा? वट एवर इज डाइजेस्टिंग वो ब्लड में तो आ गया, ब्लड में से वो किस में जा रहा है, सेल्स में जा रहा है, पर सेल्स में डाइजेस्ट कब होगा? वेन एवर यू वुड बी एक्टिव, ठीक है, एक्टिव होगे और फिजिकली एक्टिव होगे, ओनली देन इट वुड बी गेटिंग डाइजेस्टेड एंड तब अंदर से जाएगा, अदरवाइज दैट वुड बी रोमिंग इनटू दी ब्लड, और ब्लड में भी खर्च होगा वेन एवर यू वुड बी एक्टिंग फिजिकली, फिजिकली एक्टिव हो जाओगे, ठीक है। सो आपको क्या होगा कि फिजिकली एक्टिव होने से आपका ग्लूकोज लेवल लो होगा, बट अदरवाइज क्या होता है कि आप जब खा के आते हो, आपने अपने सर्केडियन रिदम भी हिलाए होते हैं, सर्केडियन रिदम्स आपके स्लीपिंग पैटर्न्स भी जो रात को है, लेट सोओगे, लेट पार्टी से आओगे, लेट सोओगे, लेट उठोगे, और फिर आप अगले दिन छुट्टी भी करोगे, शायद आधा दिन आप बेड पे ही बिताओ, बिकॉज एक लेजीनेस आती है वेन एवर यू ईट मोर, ओके। सो वो सब आपकी बॉडी में घूम रहा है, और फिर उससे क्या होगा कि आपको ही दिक्कत आने वाली है कि ग्लूकोज लेवल से, ऐसे ही तब होता है, अब एक बार हो गया, दो बार हो गया तो बॉडी संभाल लेती है, चार बार हो गया तो संभाल लेती है, लेकिन अगर आपकी ये हैबिचुअल हैबिट हो जाती है ना ओवर ईटिंग की ऑन अ रेगुलर बेसिस, तो ग्लूकोज भी ज्यादा प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज खर्च भी नहीं होता, क्योंकि आप फिजिकली एक्टिव भी नहीं हो, आप ना ज्यादा सिटिंग 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 और ओवर ईटिंग कर रहे हैं, फिजिकली एक्टिव नहीं है, तो आप देखिए फिर वो क्या होगा कि ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा तो टीजी लेवल, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, ग्लूकोज लेवल्स सब आपके रेज होने शुरू, आपकी बायोकेमिकल वैल्यूज, एंड देन यू विल स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट टू। जब ये चीजें रेज होंगी, ज्यादा होंगी, तो आपका वेट पुट ऑन भी ज्यादा होगा, ठीक है। एंड इफ यू हैव अ वेट, आप वेट पुट ऑन करेंगे, ठीक है, तो तो आप क्या करोगे कि बीमारियां, शुगर लेवल्स ऑनसेट हो जाएगा, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज ऑनसेट हो सकता है, डायबिटीज का ऑनसेट हो सकता है, और वेरियस काइंड ऑफ डिजीज, ओबेसिटी की तरफ आप लीड करेंगे। तो फिर जैसे जैसे आप थोड़ा सा वेट पुट ऑन करेंगे, आपकी एक्टिविटी लेवल और भी कम होना शुरू हो जाएगा, यू डोंट फील लाइक गेटिंग अप, एक तो आपकी मेंटली आपकी प्रेपरेशन होनी शुरू हो जाएगी कि यू डोंट फील लाइक, एंड ईटिंग हैबिट्स, और भी बॉडी क्रेविंग चलती रहेगी, बॉडी तो डिमांड करेगी, क्योंकि आपने ज्यादा खाना शुरू कर दिया तो बॉडी तो उसी हिसाब से सेट हो जाएगी, और बॉडी डिमांड करना शुरू कर देगी कि आपने खाना है, और आप सीडेंटरी लाइफस्टाइल, तो इस तरह से एक सिस्टम शुरू हो जाता है जिससे आपको डायबिटीज, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज, और बड़ी तरह की बीपी, आईजीटी कंडीशंस, इंसुलिन ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, फिर डायबिटीज होती है, फिर थोड़ा बीपी बढ़ेगा, फिर ज्यादा बीपी बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर कोलेस्ट्रॉल लेवल। सो दीज आर द रीजंस व्हेनेवर यू स्टार्ट ईटिंग एंड यू आर नॉट वर्किंग एट ऑल। अगर आप जिस हिसाब से खाते हैं, ओवर ईट कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं ईट, ठीक है, या नॉर्मल भी खाते हैं, तब तो आपको लेस फ्रीक्वेंटली रेस फिजिकली एक्टिव होना ही पड़ेगा, बट इफ यू आर टेकिंग टू मच, so then also you have to see
कि आप कितना अब उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको कितनी फिजिकल एक्टिविटी की जरूरत है। तो अगर आप ज्यादा खा रहे हैं तो ज्यादा फिजिकली भी एक्टिव होना पड़ेगा आपको, एंड देन यू वुड बी लाइक गेटिंग your body in shape. You can actually make your whatever you can say that the biochemical values of the lipids and the carbs and proteins also, that you should be taking care of, so that they should be in the normal limits. Okay, so these are some things which actually I prefer कि आपको फिजिकली एक्टिविटी की वैल्यू मैं बताऊं जिससे कोई डिजीज। और अब पहले हमने वो जो कल डेफिशिएंसी डिजीज, ओवर डेफिशिएंसी में तो चलो मान लिया कि चीजें मिल नहीं रही हैं, कोई एक तरह की चीज आप नहीं ले रहे हो डाइट में, एंड देन यू आर गेटिंग डेफिशिएंट फॉर दैट। बट अगर आप क्या कहते हैं उसको, कि अगर आपने ओवर ईटिंग कर रहे हैं, ठीक है, ओवर से आपको डायबिटीज एंड कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, तो उनका कंट्रोल आपके हाथ में है। सो यू हैव टू बी वेरी एक्टिव फिजिकली, ठीक है। सो कहीं किसी भी लेवल से यहाँ पर डायबिटिक रिवर्सल है, कॉर्नरी आर्टरी डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल एंड अदर थिंग्स, रादर देन की बहुत देर हो जाए। आप आपको ये नहीं होना चाहिए कि आप अब प्रॉब्लम ही आ गई है, एंजाइना पेन शुरू हो गई है, कुछ शुरू हो गया है, एंजियोग्राफी कराओगे और बाईपास सर्जरी करा के ही आपने सुधरना है। सुनो, this is not the thing. You have to be very active physically. Okay, so physically whenever you are active, and then you can actually अपनी माइटोकॉन्ड्रिया को और ऑटोफेजी माइटो, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा आपके लिए। सो बट यू आर मेकिंग एक्टिव, बिकॉज आपको पता माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे आप एक्टिव कर रहे हो, बिकॉज आपका जो भी ग्लूकोज लेवल है, इफ यू आर एक्टिव देन ग्लूकोज इज गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, ग्लूकोज खर्च हो रहा है, सेल्स के अंदर एंटर कर रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जाके हाफ ऑफ द फेज हो रहा है, वहां पे एटीपी मॉलिक्यूल्स बनने, एंड देन सिट्रिक एसिड साइकिल इज आल्सो वर्किंग हार्ड। बार बार एटीपी मॉलिक्यूल्स, योर बॉडी इज जनरेटिंग द एनर्जी फॉर टू वर्क, you'll feel so energetic because ATPs generate हो रहे हैं if you are physically active, एनर्जी बन रही है ना। सो यू विल बी ब्रीदिंग प्रॉपरली, और अगर आप फिजिकली एक्टिव कर रहे हो तो आप ऑक्सीजन भी बहुत ज्यादा इनहेल कर रहे हो, एंड देन एनर्जी भी है आपके पास जो फूड से जनरेट हुई है। सो ये सब चीजें ना इंटरलिंक्ड होती हैं, वॉट एवर यू ईट ओनली देन यू कैन एक्चुअली रिस्पायर। अगर आपके पास हीमोग्लोबिन भी, मिनरल्स भी सब ठीक है, ओनली देन यू कैन रिस्पायर इन अ बेटर वे, ठीक है। सो इन चीजों का ख्याल रखिए कि फिजिकली एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और माइटोकॉन्ड्रिया का एक्टिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपके ATP molecules, or which is energy currency of the body. So that's why the mitochondria is called the powerhouse of the body or the cell, क्योंकि वहीं सब कुछ होता है, ठीक है। सो इससे ज्यादा अगर साइंस है ना, वो आपके लेवल के लिए थोड़ा नॉन साइंसेस होते हैं, तो थोड़ा सा दिक्कत आ जाएगी। बट इस चीज को आप समझिए कि कहाँ पे क्या होना है, और ओवर ईटिंग से क्या है, और फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ क्यों होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब ऐसी कुछ डिजीजेज हैं, देखो, गेस्ट जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की डिजीज है, मस्कुलो स्केलेटल की डिजीजेज हैं। सो ये डिजीजेस बेसिकली ना सीधी सीधी डाइट से रिलेटेड नहीं होती हैं। दिस इज समथिंग, इन्फेक्शन ऑफ द जॉइंट पेन्स हो गया, इन्फेक्शन कहीं की भी इन्फेक्शन होगी, स्किन इन्फेक्शन होगी, एंड बट स्टिल यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव टू डू दी डाइटरी मॉडिफिकेशंस, ठीक है। डाइटरी मॉडिफिकेशंस आप करते हैं तो आपको बेनिफिट होंगे बिकॉज ऑफ दीज। आप सबको सब कुछ मतलब सबको सब कुछ आपको डाइटरी पैटर्न से भी मिलता है, बिकॉज एंटी इन्फेक्टेड बॉडी में एनर्जी सिस्टम डिफरेंट टाइप्स के नहीं होते हैं। देखो, बेसिकली वट एवर यू दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द एटीपी मॉलिक्यूल्स एंड इनोसाइन ट्राइफॉस्फेट्स। ओके, दिस इज द एनर्जी करेंसी of our body which is used by various systems, okay, to work for the working for the brain, working for the heart and working for the metabolism also, ठीक है। ये सारा कुछ तो वही एक एनर्जी करेंसी है, दैट्स वाई जो बॉडी की है, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ एनर्जीज नहीं होती हैं। एनर्जी का मतलब ये है, this is only the energy currency which is used by the, ठीक है, this is called the energy currency which is used by your body, which is then created by the different kind of the food item, whatever you have eaten, that would be converted into glucose and that would be absorbed into the blood, and then it would be supplied to the whole of the cell systems, okay। And whenever you would be actually active physically, only then it would be actually utilized, तभी यूटिलाइज होती हैं ये एटीपी मॉलिक्यूल्स, एंड मोर ऑफ द ग्लूकोज वुड बी यूटिलाइज एंड दैट वुड बी कन्वर्टेड इनटू द एटीपी मॉलिक्यूल्स, ओके।
सो नाउ वी विल बी गोइंग टू डिस्कस, बिकॉज ऑब्जेक्टिव्स हैं जो इस तरह के डिजीजेस के हैं. अब मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि येस्टरडे वी वर डिस्कसिंग ना, तो ये वाला टॉपिक रह गया था क्योंकि डेफिशिएंसी होगी तो एटीपी मॉलिक्यूल्स नहीं बनेंगे, तो बॉडी में स्टैमिना एंड एनर्जी नहीं होगी. ओवर ईट करोगे तो आपको डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस हो सकती हैं, इसी तरह से कि अगर फिजिकली एक्टिव नहीं हो, जिसमें हम डायबिटीज एंड कॉरोनरी आर्टरी डिजीज डिस्कस कर रहे थे. वो क्यों होंगी उसका रीजन आपको आज मैंने बताया है इस छोटी डिस्कशन में. सो यू कैन गो एंड रिलेट मोर ऑफ द थिंग्स. ओके, सो अगर आपको अब मैं किसी और दिन चैप्टर में ये चीजें माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर एंड ऑल, बिकॉज आपके उसमें नहीं है, सो आई विल बी लाइक शोइंग इट विद यू माई, जो मेरी अपनी प्रेजेंटेशंस होती है ना, मैंने अभी तक आपको डीएनएचई का दिया है. इफ आई विल गेट टाइम ना, सो वी विल बी गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट ओनली. ठीक है, सो मैं आपको वो समझाऊंगी सो दैट आपको समझ आना शुरू हो कि आउट ऑफ द वे. सो थोड़ी बायोकेमिस्ट्री में जाके थोड़ी सी बायोलॉजी पढ़ के then you'll be getting to know. So today's we are going to do those diseases which is not deficiency, which is not over, but that would also covered by the you can say that lifestyle modifications of the dietary modifications also. एक मैं आपको बताती हूँ, स्केड्यूल का भी हम डिस्कस कर लें. मेरे को लगता था स्केड्यूल भी कहाँ है, एक मिनट कि पिछली बार भी. सो वी हैव टू डिस्कस. सो मुझे इतनी दिक्कत नहीं होती है कि हम लोग किसी भी स्केड्यूल के अकॉर्डिंगली. सो दिस इज जुलाई नहीं है अभी, 25 जून है, तो हम डीएनएचई 2 ही चल रहे हैं. ठीक है, और नेक्स्ट आपका हाँ ये 25 जून 24-25 जून को डीएनएचई 2 है, तो नेक्स्ट जुलाई से हमारा 1 जुलाई से डीएनएचई 3 शुरू हो जाएगा एंड दैट वुड बी टिल 16 जुलाई. ओके, 1 and 2 जुलाई, 8th and 9th जुलाई एंड 15th and 16th जुलाई. तो हमारे हाँ 3 बार में 6 क्लासेस 2 आवर्स की होने में. ओके, so you'll be getting the knowledge about the DNHE3. Okay, so this is the last lecture of the DNHE2. So next, from the next week, 6 days. Okay, next week 2 days, uske next week 2 days, uske next week 2 days, we will be going to discuss about the DNHE3. And after that 22nd July, 23rd, 29th and 23rd, मतलब 4 weeks हम 4 days 2 weeks हम फिर DNHE4 डिस्कस करेंगे. Okay, so this is the counseling schedule. Next time we will be going to discuss. This is the last counseling session of the DNHE2. Okay, as far because this is a distance lecture, so I want to discuss about your problems. But as far as myself concerned, so I really want to cover as much as the syllabus I can do, because sometimes these chapters, some chapters they take a time to cover, because something very important is written into that, so I don't want to skip about that. क्योंकि मैं आपको बेसिकली ऐसे फंडास समझाती हूँ कि आपको वो समझ आ जाएगा. अदरवाइज ऑल्सो यू कैन हैव माई पीपीटीज ऑल्सो ऑन डिफरेंट टॉपिक्स. ओके, सो वो आपको अवेलेबल हो जाएंगी, वो कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है, आई विल बी प्रोवाइडिंग, मतलब आप यू कैन आस्क मी. ओके, एनी टाइम इफ एवरीबॉडी. अदरवाइज आपका डीएनएचई का सिलेबस आपकी डीएनएचई की बुक्स में इसी में से आएगा, बट उसको क्लैरिफाई करने के लिए, समझने के लिए यू कैन एक्चुअली use them. Okay, so my material. Okay, so the after studying this unit, ये सब समझने के बाद आपको पैनक्रियाटिक जीआई ट्रैक्ट एंड पैनक्रियाटिक डिसऑर्डर्स पता लगेंगे और इन्फेक्शंस पता चलेंगी. और ठीक है, जो मैं अभी बोला, सो आई want to discuss. Okay, so सबसे पहले क्या है कि gastrointestinal problem, whatever I have discussed, sometimes we have a problem with the stomach and the esophagus. उसमें क्या होता है, किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं esophagus में. esophagitis, इससे मतलब पता चलता है कि उसमें इन्फेक्शन. सो इसोफेजियल वॉल जो है, व्हेनेवर यू ईट फूड एंड देन यू वुड बी हैविंग इन्फेक्शन इन दैट वॉल. ठीक है, तो आपको करना क्या है, डाइटरी मैनेजमेंट क्या है, आपको ब्लैंड फाइबर रिस्ट्रिक्टेड डाइट, क्योंकि आपकी फूड पाइप में ही दिक्कत आ गई है. सो आपको ब्लैंड डाइट खानी चाहिए, फाइबर रिस्ट्रिक्टेड डाइट खानी चाहिए. वेट रिडक्शन फॉर ओबीज इंडिविजुअल, सिंस एक्सेस ऑफ द एब्डोमिनल फैट इज बिलीव्ड टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक हेरिनेशन एंड द रिफ्लक्स. एंड द स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खानी चाहिए, एक बार में नहीं खानी चाहिए. सो दिस इज एक्चुअली दी. And sometimes the hernia kind of a problem would be there, which is not actually started from the dietary, but you have to maintain the dietary habits. Okay, ये ऐसी डिजीज नहीं है तो डाइट से होंगी. दे आर यू आर सफरिंग, स्टार्टेड सफरिंग अदरवाइज विद दिस डिजीजेस. बट होगा क्या, मेंटेन करने के लिए ना, सम बहुत ज्यादा उसको मेंटेन करने के लिए यू हैव टू डिपेंडेंट अपॉन द डाइट ओनली. आपको डाइट को रिस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा और डाइट से ही आपकी ये कंट्रोल में आएंगी.
आपको डाइट मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी और ऐसी डाइट्स जिससे इम्यूनिटी बूस्ट हो, बिकॉज इन्फेक्शन डिजीजेस है। अब जैसे कोरोना था, कोरोना किसी को डाइट से थोड़ा हुआ था। ओके, so that was an infection which you can get because the virus was so vulnerable and we were so vulnerable towards that virus, क्योंकि अगर वो contagious था, एक दूसरे से हो ही रहा था तो हो ही रहा था। ठीक है, तो sometimes everybody has, मतलब maximum of the population they have suffered from with corona, ठीक है, COVID-19, एंड अदरवाइज देयर वर द मॉडिफिकेशन ऑफ द रेट्रोवायरसेस और जो भी बाद में ओमिक्रॉन एंड जो भी आया। ठीक है, सो दोज वायरसेस वर सो एक्टिव, ये नहीं था कि अगर आप हेल्दी हो तो समटाइम्स द पर्सन्स दे वर एसिम्प्टोमेटिक, बट द पर्सन्स sometimes the persons with this symptomatic also, so they were actually having so much of a problems. They were weak and some associated problems they have also uh, रेज हो गई थी उनके साथ कोविड के साथ। ठीक है, तो आपको ये प्रॉब्लम्स देखनी ही पड़ेंगी कि अब ये कैसे इनको ठीक किया जाए। तो कोरोना में भी तो हमने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की, वी आर वेरी फिजिकली एक्टिव होने को कहा गया और एल्कलाइन पीएच को मेंटेन करने के लिए कहा गया। सो पीएच कैसे बॉडी की मेंटेन होती है? ऑब्वियसली यू हैव टू टेक लेस एसिडिक फूड और एल्कलिनिटी बॉडी की, डिफरेंट काइंड ऑफ द एल्कलाइन वाटर बनाने सीखे सबने। ठीक है, तो एटलीस्ट तब इतना तो पता चल गया कि यस, एल्कलिनिटी ऑफ द बॉडी और द बॉडी सॉल्यूशंस मैटर्स अ लॉट, क्योंकि एल्कलाइन कंडीशंस ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें इवन कैंसर सेल तक सरवाइव नहीं करती हैं। ठीक है, सो द कैंसर सेल्स तक भी उसमें सरवाइव नहीं करती हैं, तो फिर आपको so these are some kind of the problems which you can actually see कि yes, हम इससे बच सकते हैं इन डिजीज से थोड़ा बहुत डाइटरी पैटर्न्स को चेंज करके। और हर्निया इज ऑल्सो वन ऑफ द इन्फेक्शन, जैसे हर्निया पोर्शन है स्टमक के थ्रू इसोफेजियल और डायफ्राग्म तक होता है, तो इसमें भी हमें ब्लैंड डाइट लेनी पड़ेगी। ठीक है, एंड रिस्ट्रिक्टेड डाइट होगी, जैसे इन बिटवीन मील्स थोड़ी सी स्मॉल मील्स लेनी है, और इसमें से हमें निकालनी है रिस्ट्रिक्शंस है कि बेड टाइम जाते हुए खाना नहीं खाना, तो वी हैव टू। सो वेट रिडक्शन इन केस ऑफ द इंडिविजुअल ओबीज इंडिविजुअल में वेट रिडक्शन सजेस्ट किया जाता है। अब इसोफेजियल रिफ्लक्स की बात अगर हम करें तो रिफ्लक्स ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट्स इनटू द इसोफेगस। गैस्ट्रिक कंटेंट्स क्या होता है कि स्टमक में इतनी एसिडिटी एंड ऑल बढ़ती है, वो इसोफेगस की तरह ऊपर की तरफ आती है। सो इसमें हाई प्रोटीन डाइट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ द फैट्स हमें करना चाहिए, अवॉइडेंस ऑफ द फूड, लोअरिंग द प्रेशर ऑन द लोअर इसोफेजियल स्फिंक्चर पे जिसका हो, जैसे अल्कोहल, कैफीन, चॉकलेट, फैटी मील्स एंड द पेपरमिंट, ये सब अवॉइड करना है। ठीक है, अवॉइडेंस ऑफ द एसिडिक मील्स एंड फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल मील्स लेनी है, नॉट द बिग मील्स। ओके, फ्रीक्वेंट मील्स लेनी है और स्मॉल मील्स लेनी है। वेट रिडक्शन फॉर द ओवरवेट, आप देखोगे हर किसी में वेट रिडक्शन वेट रिडक्शन वेट रिडक्शन पे जोर दिया जाता है, बिकॉज द ओबेसिटी इज नॉट एट ऑल गुड इन एनी ऑफ द कंडीशन। ठीक है, उसके बाद और भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द एसोफेगस हो जाता है, उसमें पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है, डाइट है, प्रोग्रेशन टू लो फाइबर फूड लेना पड़ेगा। कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो गई है तो पेशेंट विद द is fed by the gastrotomy, and the small frequent meals are suggested in each kind of the infection whenever it would be having the esophageal stomach or any kind of the infection। और अगर इंडाइजेशन हो गई है तब आपने क्या करना है? ठीक है, इंडाइजेशन हो गई है देन ऑल्सो व्हाट यू रियली वांटेड टू डू कि इनएबिलिटी टू डाइजेशन हो गई है, अब और नहीं खाया जा रहा बिकॉज पहले ही इंडाइजेशन हो रही है, तो सिलेक्शन ऑफ द फूड फ्रॉम द ईच ग्रुप, आपको हर फूड ग्रुप के से डिफरेंट डिफरेंट थोड़े थोड़े मील्स लेने हैं हर फूड ग्रुप से, एंड रेगुलर एंड द स्मॉल मील्स वर सजेस्टेड टू टेक रादर देन कि आप लार्ज मील लेके, इंडाइजेशन तो पहले है, सो लार्ज मील वुड बी ऑर्डर, थोड़ा मील लो एंड वो थोड़ा दो टाइम दो उसको, अगर वो डाइजेस्ट हो रहा है एंड देन आफ्टर सम टाइम यू कैन हैव, बट स्मॉल 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 मील्स। गैस्ट्राइटिस में क्या होगा? इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकोसल मेम्ब्रेन ऑफ द स्टमक, इंटरनल मेम्ब्रेन। इसमें क्या है, अगर तो गैस्ट्राइटिस एक्यूट है, बहुत ही एक्यूट हो गया, तो विद होल्डिंग द फूड फॉर 24 to 48 hours allow to stomach to rest and replacement of the water to electrolyte loss due to the severe vomiting। ठीक है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स, बिकॉज अगर आपकी वॉमिट्स आ रही हैं तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है।
ठीक है, रिप्लेसमेंट ऑफ द वाटर एंड द इलेक्ट्रोलाइट्स वुड बी, वाटर की जगह आप इलेक्ट्रोलाइट लोगे, ठीक है, और आप स्टमक को खाली रखने की कोशिश करोगे 24 आवर टू 48 आवर्स, ताकि आप उसमें और मत कुछ डालो, क्योंकि ऑलरेडी स्टमक की जो लाइनिंग है म्यूकोजल मेम्ब्रेन है दैट इज एक्चुअली सफरिंग ऑलरेडी, ठीक है. So after 1 to 2 days, small amounts of the clear fluid are administered with the gradual progression of the soft, easily digested foods, soft meals, okay, खिचड़ी and curd and ये सारी चीजें. And अगर तो क्रोनिक है, ठीक है, तो करेक्टिंग फॉल्टी डाइटरी हैबिट्स, क्रोनिक का मतलब है कि आपको रहता ही है, ठीक है, गैस्ट्रोराइटिस रहता ही है, एसिडिटी रहती ही है, म्यूकोजल मेम्ब्रेन ठीक ही नहीं हो रही है, मतलब थोड़ी थोड़ी काफी सालों से चलता आ रहा है, काफी लोगों को ऐसी दिक्कत होती है. एक्यूट का मतलब तो ये था अभी आपने खाया कुछ बहुत ही इन्फेक्टेड था, जो आपने खाया उससे एकदम आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई, एंड उसके बाद आपने फिर उसको रेस्ट दिया और स्मॉल मील्स लेनी है, दैट इज टू अ सॉफ्ट मील्स, ओके. बट जिनको क्रोनिक है कि रहता ही है गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम, तो हमने क्या करना है कि ये चेक करना है कि ऐसा कौन सा मील आप खाते हैं, ऐसी कौन सा फूड है जिससे आप एलर्जिक हैं और गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है. तो वो ऐसा कौन सा मील है, तो हमें वो सारा का सारा बीच में से निकालना पड़ेगा. वी हैव टू थिंक अबाउट दो मील्स कि क्या दिक्कत आ रही है, एंड हमने कैलोरी इनटेक भी पे भी ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा कैलोरीज भी ना हमारे फूड में जाएं, और स्मॉल स्मॉल मील्स ही लेनी है, एंड दैट टू वी हैव टू शिफ्ट टू द ब्लैंड एंड सॉफ्ट मील्स, ठीक है. एंड ब्लैंड मील्स भी खानी है. बहुत ब्लैंड मील का मतलब होता है जिसमें बहुत ही मिर्च मसाला नहीं होता है, बहुत ज्यादा ऑयल नहीं होता है, तो हमें उन ऐसे सा फूड पे करना पड़ेगा, क्योंकि हमें काफी देर से जो चलती आ रही गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है उसको ठीक करना है, ठीक है. एंड 4 to 6 फीडिंग्स देनी है और आयरन सप्लीमेंट्स भी देने हैं, ठीक है. तो पेप्टिक अल्सर क्या होता है, लोकलाइज्ड इरोजन है, ठीक है. ये पेप्टिक अल्सर से क्या है, अल्सर जो है उसमें आपने करना है, क्योंकि इरोजन्स है, अब वो जो म्यूकस मेम्ब्रेन थी ना वो और भी ज्यादा इंजर्ड हो गई है, दैट वुड हैव टेकन द फॉर्म ऑफ द अल्सर, ठीक है. और एलिमेंट्री कनाल की जिसमें कंटैक्ट विद दी जो गैस्ट्रिक जूसेस के कंटैक्ट में रहती है, तो इसमें आपको ब्लेंड डाइट विद दी फाइबर रिस्ट्रिक्शंस, फाइबर नहीं खाने हैं आपको बहुत ज्यादा, बिकॉज वो फाइबर है, फिर वो वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा चाहिए होता है उसको. whenever you would be having the fiber content, या मिलेट्स के साथ आप फूड, या जो आप ये करते हो कि आप मल्टीग्रेन आटा लेना शुरू कर देते हो, या और फाइबर बहुत ज्यादा यूज करना शुरू, ऐसे केस में फाइबर को रिस्ट्रिक्ट करना है, बिकॉज फाइबर क्या करता है कि अगर आप बहुत फाइबरस फूड लेते हो ना और आप पानी पीना कम करते हो, उसमें पानी बहुत ज्यादा पीना चाहिए, क्योंकि फाइबर बहुत ज्यादा पानी रिक्वायर्ड होता है फॉर डाइजेशन एंड फॉर सोकिंग के लिए. तो वो क्या करता है कि स्टमक में जाके ना आपकी लाइनिंग से ही वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, तो सेल्स को, और आप सोचो कि पहले से ही वहां पे क्या है, पहले से ही वो तो म्यूकस मेम्ब्रेन उसकी खराब हुई हुई है, और इवन नाउ तो दैट हैव टेकन दी फॉर्म ऑफ द अल्सर, वुंडेड हो गई है, वो जख्म हुए हुए हैं वहां. तो फिर अगर आप डाइटरी और फाइबर्स लोगे, तो देखो फाइबर्स बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, वी हैव टू टेक दिस फाइबर्स एंड मिलेट्स एंड ऑल. बट बात क्या है कि किस टाइम लेने, किस टाइम नहीं लेने हैं. तो अगर आपकी स्टमक में ऑलरेडी दिक्कत चल रही है, तो यू आर नॉट एट ऑल सजेस्टेड टू टेक दोस फाइबर्स, so that you can have a good amount of you can say the bland food जिसको वाटर रिक्वायर्ड नहीं होता, और वाटर आपको इलेक्ट्रोलाइट वाटर ही चाहिए, ठीक है. तो आप फाइबर्स नहीं लोगे एंड स्मॉल मील्स लोगे, दैट टू ऑफ बिना मिर्च मसाले की और घी तेल के ब्लैंड डाइट. फ्रीक्वेंट फीडिंग बट नो बेड टाइम स्नैक्स, बेड टाइम पे जाके आपको स्नैक्स तो बिल्कुल नहीं लेने हैं, जल्दी खाना खा के और अभी ब्लैंड फूड खा के ओनली देन यू आर गोइंग टू बेड. क्योंकि अब अगर आप खाना ज्यादा खा के और लेट खा के आप बेड पे जा रहे हो ना, देन इट वुड बी बैड हैबिट, एंड सिंस इट इज बिलीव टू स्टिमुलेट द सिक्रीशन ऑफ ड्यूरिंग द नाइट, क्योंकि उसने भी गैस्ट्रिक जूसेस में फिर एसिडिटी ही सिक्रीट करनी है ड्यूरिंग द बेड टाइम, बिकॉज सिक्रीशन देखो एचसीएल तो सिक्रीट होता है ना आपकी बॉडी में स्टमक में व्हेनेवर यू ईट, ठीक है. तो डाइजेशन के लिए तो वो होना ही होना है. अगर आप बहुत ज्यादा फूड खा रहे हो तो उतना ही ज्यादा होगा. अब आप ब्लैंड फूड खा रहे हो, उसमें मिर्च मसाला कम है, ऑयल कम है, तो एचसीएल के साथ मिलके वो उतनी दिक्कत नहीं करेगा, डाइजेस्ट ही होगा. और वैसे भी अल्सर्स हैं, ठीक है, तो आप ब्लैंड फूड खाओगे तो उसकी डाइजेशन इजीली हो जाती है, जिसमें इतनी ज्यादा सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड जूसेस की नहीं चाहिए होती है, बहुत कम होता है. सिंपल फूड सिंपल तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है.
सो अगर अब हमने देखना है कि इन डिजीजेस को डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ द डिजीजेस, क्योंकि ऐसी चीजों में आपको डाइटरी पैटर्न्स ही ठीक करने पड़ेंगे अपने, ठीक है। तो हमें, अगर हम डिजीज को समझ आते हैं ना, तो हमें डाइटरी पैटर्न्स को चेंज करने में हमें इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। ब्लैंड फाइबर रिस्ट्रिक्टेड डाइट, ब्लैंड एंड फाइबर रिस्ट्रिक्टेड डाइट। अदरवाइज हम फाइबर लेने के लिए कहते हैं, फिलिंग होती है, स्टाइटी फीलिंग के लिए कहते हैं, और इजीली बाउल मूवमेंट्स के लिए कहते हैं। बट आप सोचिए कि जैसे ही स्टमक प्रॉब्लम्स होंगी, तो you would be having the restricted diet, and which is recommended particularly for the condition associated with the inflammation or the damage of the wall of the, खासकर इसमें गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अगर ऑलरेडी कोई दिक्कत चल रही है, थोड़ी सी भी इंडाइजेशन है, देन स्टॉप हैविंग द फाइबर फूड एंड द ब्लैंड फूड पे आ जाइए। मिर्चें, मसाले, घी, तेल फटाफट बंद कीजिए। फिर से ले सकते हैं whenever you would be okay, but till the time you are not okay, so you have to stop taking those food items, okay। सो हम जब ग्रेजुअली हम उस डाइट पे आते हैं, इंक्लूडिंग द माइल्ड स्पाइसेस एंड द माइल्ड फ्लेवर फूड, जैसे जैसे इंप्रूव होती है कंडीशन पेशेंट की, तो एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द टॉलरेंस ऑफ द इंडिविजुअल पेशेंट। क्योंकि होगा क्या, अभी वो रिकवर किया है, समटाइम्स क्या है, इट मीन्स एसिडिटी, वाटर सोल्यूशन बेस्ड फाइबर लें, शेक लें, नो नो, फाइबर लेने ही नहीं है, फाइबर नहीं लेनी है आपको, फाइबरस फूड नहीं लेना, ब्लैंड फूड लेना है, ठीक है। या सो अगर जैसे जैसे इंप्रूव होता, पता क्या होता है, अब एक इंडिविजुअलिटी भी होती है। मैम, सॉरी मैम, आई हैव अ क्वेरी। या मैम, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंट स्मॉल मील? मतलब हम लोग कितना टाइम पीरियड उसमें कंसीडर करते हैं कि इतने टाइम के बाद हम लोगों को वो डाइट जो है देखो, वो लेना हाँ, अब इसको आप सिस्टम से समझो, ये मैं नहीं समझाऊंगी, मैं आपको कैसे बता रही हूँ। अब देखो, आप ओजीटीटी टेस्ट कराते हो ना, ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। वो टेस्ट कब होता है कि आप फुल मील लेते हो अच्छे सी, उसके 2 आवर्स के बाद एग्जैक्टली आपकी शुगर लेवल चेक होते हैं। इफ दे आर 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है, ठीक है, तो यू आर परफेक्टली फाइन कि आपने काफी खाना खाया, बट यू आर परफेक्टली फाइन टू एब्जॉर्ब और डाइजेस्ट दैट काइंड ऑफ अ फूड विद इन द 2 आवर्स, ठीक है। इसका मतलब जब आप अच्छे से खाना खाते हो, और फुल्का, दाल, चावल, सैलड, एक सब्जी, एक दाल, कर्ड, फाइबरस फूड, सब कुछ, तो आपको 2 आवर्स लगते हैं whenever you are healthy, okay, and whenever you don't have any other stomach और gastritis और किसी भी तरह का कुछ इन्फेक्शन भी नहीं है, ठीक है। 2 आवर्स, इसका मतलब 2 घंटे में हम डाइजेस्ट कर लेते हैं। पर जब हम ब्लैंड फूड ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा खाने में ले रहे हैं, तो वैसे आप 3 मील्स होती हैं, तो उसको 5 कर सकते हो, ठीक है। जैसे सुबह ब्रेकफास्ट है और लंच के बीच में एक मील आ गई, 2-2.5 घंटे का तो गैप डालना ही पड़ेगा, बिकॉज यू हैव टू ईट लेस एंड ब्लैंड। पहले आप ब्रेकफास्ट ज्यादा करते हो और ब्लैंड lunch मीन्स ज्यादा देते हो। ब्लैंड मीन्स अ स्मॉल क्वांटिटी? नो नो नो, ब्लैंड मील का मतलब होता है फीका सा खाना, ब्लैंड मील्स। ओके, फीका ओके, मतलब जिसमें मिर्च, मसाले, मिर्च मसाले कम स्पाइसेस हो, और ऑयल भी, फ्राइड नहीं। जैसे राइट। हम घिया की सब्जी बनाते हैं, थोड़ा कम ऑयल डालो और मिर्चें नहीं ज्यादा, मसाले नहीं ज्यादा, थोड़ी बॉइल्ड या स्टीम्ड फूड बनाते हैं, ठीक है, वो होता है ब्लैंड फूड। खिचड़ी भी ब्लैंड में आ जाती है, ठीक है, ज्यादा मिर्चें नहीं, ज्यादा तड़के वाली नहीं, हल्की दाल के साथ। और घिया की सब्जी अगर बहुत ज्यादा मसाले नहीं है, ठीक है, ये हल्के खाने वाले, हल्की दाल, ज्यादा मसाले नहीं, पीली वाली दाल जो होती है, ठीक है। सो ऑल दीज, ठीक है, सो ऑल दीज फूड्स वुड बी नोन एज ब्लैंड। ब्लैंड फूड का मतलब सिर्फ और सिर्फ मिर्च, मसाले एंड ऑयल कम होता है। उसके अलावा आप नमक डालो, और हल्की मिर्च लोग डालते हैं, बट अगर बहुत ज्यादा एक्यूट है प्रॉब्लम, देन ऑल्सो यू शुड नॉट गो फॉर दैट, ठीक राइट। है। और मैम, वन थिंग मोर, पेप्टिक अल्सर में आपने अभी एक यहाँ पे मैंने पढ़ा, मोस्ट अल्सर कॉज्ड बाय एच, दैट व्हाट इज एच? एच कहाँ कहाँ है? मैं एक ये फर्स्ट लाइन लिखी हुई है यहाँ पे, मोस्ट अल्सर कॉज्ड बाय एच। पेज नंबर बोलो। Helicobacter pylori. दैट इज द Helicobacter नेक्स्ट pylori. लाइन। That is bacteria. है, कौन बोल रहा है? मोस्ट अल्सर्स आर कॉल्ड, Sunil. Helicobacter. Yes. Pylori.
कहाँ पे कह रहे हो आप मुझे? मैम जो आपने अभी जो हमें डिसीज ये करवा रहे थे ना डिसऑर्डर्स, उसमें पेप्टिक अल्सर था, हाँ हाँ, है ना, उसी ये में है मैम ये फीचर्स में। लोकलाइज पेप्टिक अल्सर। Sir is causative bacterial. एक्सक्यूज मी, Helicobacter pylori is सुरेश a जी causative प्लीज of आप the अपना peptic म्यूट ulcer. कीजिए, वी आर गेटिंग डिस्टर्ब्ड। ओके, आप प्लीज जब बात करनी होती है तो आप बंद कर लीजिए ना, बात करने को मना नहीं किया हुआ, बट आपको बाकियों को भी सुनता है ना, फिर डजंट लुक नाइस। पेप्टिक अल्सर में एच कहाँ लिखा है? लोकलाइज वेयरिंग इरोजन ऑफ द म्यूकोजल लाइनिंग एंड द एलिमेंटरी कैनाल ब्लैंड फराइट एंड कॉज बाय, मैम ये जो टेबल है, डिसऑर्डर्स का टेबल है जो 10 हाँ जी पॉइंट। हाँ जी हाँ जी, जो फीचर्स वाला कॉलम है ना मैम, उसमें लिखा हुआ है मोस्ट अल्सर कॉज्ड बाय एच पायलरी आर कंप्लीटली ट्रीटेबल। इसोफेगाइटिस, हर्निया, इसोफेजियल, इसोफेजियल मेरे पास नहीं है। मेरे पास बुक पेप्टिक में भी अल्सर लिखा में हुआ लिखा है, है पेप्टिक अल्सर में लिखा है। मैम। हाँ जी मैम। मैम एच फेलोरी, मैम एच वो फेलोरी पता क्या, या बाय एच अच्छा फेलोरी। चलो, यहाँ मेरे पास नहीं लिखा हुआ, बट मैं आपको वैसे बता देती हूँ, ये मेरे पास शायद पुरानी किताबें हैं या क्या है, क्योंकि एच पिलोरी की मैं बात बता रही हूँ। एच पिलोरी इज अ माइक्रोबैक्टीरियम, जो फ्लोरा है हमारी, जो बॉडी में होता ही है यूजुअली। ओके, कभी बार ना इसकी पेप्टिक अल्सर्स में क्या होता है, इसकी ना अमाउंट ज्यादा हो जाती है, ठीक है, ये इतनी खराबी नहीं करता है, लेकिन क्या है कि इसका अमाउंट ज्यादा होने से ना आपकी डाइजेशन पे बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, इनडाइजेशन रहनी शुरू हो जाती है। ये जो मैंने आपको ये जो चीजें थी ना कि जो क्रोनिक वाली, क्रोनिक, ठीक है, क्रोनिक वाली जो है ना, मेरे पास ये नहीं है, मैं आपको वैसे बता रही हूँ, जो मैं ढूंढ रही हूँ ना यहाँ, इसमें ये पेलोरी नहीं डिस्कस किया हुआ, बट पेलोरी मैं आपको वैसे ओके। बता देती हूँ कि ये जो क्रोनिक वाला होता है ना, ये दिक्कत आती है पेलोरी की वजह से। आपकी इनडाइजेशन, आपको गैस्ट्रिक ट्रबल्स, आपकी बर्पिंग वाला बहुत गंदा है, एंड बहुत ही बेचैनी। देखो, गैस्ट्रिक ट्रबल इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम, कहने को वो छोटी है, बट द पर्सन्स दे एक्चुअली फील सो सो एंड डिस्कम्फर्ट, डिस्कम्फर्ट वाली है, सिर को सारी जगह, मतलब हाँ है, या एच एच हेलिकोबैक्टर पिलोरी, हेलिकोबैक्टर। इसी की बात कर रही हूँ। तो होता पता क्या है, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि होता क्या है कि तब आपको डॉक्टर्स क्या देते हैं, एंटीबायोटिक्स देते हैं, सो दैट आपका जो ये पेलोरी है इसका अमाउंट कम हो जाए, क्योंकि वो बैक्टीरिया वायरसेस को किल करने के लिए, जो ये नॉर्मल माइक्रोफ्लोरा में पिलोरी आ जाता है, इसको फिर किल करके इसका अमाउंट लो करते हैं, क्योंकि इसका एक नंबर लिमिटेड होना चाहिए। अगर इस नंबर को क्रॉस करता है, ये बहुत ज्यादा माइक्रोबैक्टीरियम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो ये दिक्कतें करता है पेप्टिक अल्सर्स की, ठीक है। तो इसका एक ही इलाज होता है कि हम तब उसको एंटीबायोटिक्स देते हैं, सो दैट द पिलोरी टेस्ट करवाने के बाद पता चलता है ये कि हाँ, दैट प्रॉब्लम इज जस्ट बिकॉज ऑफ द पिलोरी, ठीक है। जस्ट वेट फॉर टू बहुत इंपॉर्टेंट
हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। सो पिलोरी की बात करें सो तो दैट वुड बी एक्चुअली गेटिंग दी अल्सर्स। ओके, सो अब आपको पता चल गया कि एंटीबायोटिक देने पड़ते हैं, उसकी एक अलग ट्रीटमेंट है, बट आपको पिलोरी टेस्ट करवाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि एंटीबायोटिक खा लिया आपने सोचा कि पेप्टिक अल्सर है, उसका रीजन कुछ और होगा, मे बी वो ईटरी डाइटरी पैटर्न से, तो आप एंटीबायोटिक खाओ तो वो और प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। बट हाँ, पिलोरी की टेस्ट में इफ यू विल गेट इट द पिलोरी टेस्ट डन एंड द पिलोरी के एच पिलोरी के जो अमाउंट है, नंबर ऑफ द पिलोरी माइकोबैक्टीरियम उस वो ज्यादा है, only then it would be suggested that go to the doctor and only the doctor will decide कि कितना है और कितना किससे ठीक होगा। ठीक है, इसके और भी तरीके हैं, अब मैं यहाँ एंडोर्स नहीं करना चाहती हूँ, बट यस देयर वुड बी डाइटरी पैटर्न्स आल्सो। हमारी डाइट में, हमारे घर में ऐसी चीजें होती हैं which I give for this pylori test to reduce because at my clinic also, so वो एंटीबायोटिक पे जाने की, बिकॉज एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एजिंग बढ़ाते हैं आपकी बॉडी की, सो इट्स नॉट सजेस्टेड दैट यू शुड गो फॉर द एंटीबायोटिक ऑल्सो, यू कैन एक्चुअली गो फॉर द डाइटरी। एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए डाइटिशियंस, वी कैन एक्चुअली मॉडिफाई आवर डाइट्स। ओके, सो कुछ ऐसी चीजें हैं जो पिलोरी को कम कर देती हैं। ठीक है, तो ऐसी डाइटरी मॉडिफिकेशंस करके वी हैव टू ट्रीट द पीपल, बिकॉज वी आर नॉट द पर्सन्स हु कैन एक्चुअली गो फॉर द एंटीबायोटिक्स एंड ऑल। वो मैंने आपको नेचुरली बताई बिकॉज वन ऑफ द फैमिली मेंबर वाज गेटिंग फ्यू इयर्स बैक, उसको पिलोरी था और ओवर था, तो एंटीबायोटिक देते हैं, देन उसका नॉर्मल आ जाता है, उसकी गैस्ट्रोएंटराइटिस जो उसकी गैस्ट्रिक ट्रबल, अनकंफर्ट, डिस्कंफर्ट ऑफ द बॉडी है ना, वो ठीक हो जाता है। ओके, so all these things would be, so we have to think about those things which have the capability to fight with the those food items, those medicinal properties of those things। okay, so that है हमारी बॉडी में बहुत ऐसी हमारी आई मीन इंडियन फूड सिस्टम में, मार्केट में और इंडिया में ऐसी चीजें अवेलेबल हैं, बस पढ़ने की बात होती है, जड़ी बूटियां ये वो, बिकॉज दे आर यूज्ड इन द फूड ओनली। ओके, ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हमारे किचन में भी होते हैं, ऐसे इंग्रेडिएंट्स जो हम चलो किचन में नहीं मार्केट में होते हैं, which could be added to, which have a medicinal properties and they can actually fight with the pylori too। okay, so ये gastric ulcers के साथ, so there are so many things which I do। so whenever you come into the practice, you can also start working on those and then do with that, because we are as a dietitians, we are as a nutritionist, so we can actually suggest for the antibiotics। okay, Okay, so this was, we were discussing about the peptic ulcer. So I have told you so that we can actually manage with the bland restricted diets, fiber restricted diets। okay, so अब आपको समझ आ गया कि हमें fiber restricted diet क्यों लेनी है,
because we are actually fighting with the all these things which is actually which have already disturbed the membranes. Okay, सो द फाइबर का आप समझो कि फाइबर वाटर को अगर लेते हो आप, और इन चीजों में क्या होता है कि वाटर आपको लेना है तो आपको इलेक्ट्रोलाइट पे स्विच ऑन करना होता है, ठीक है। सो आपको फाइबर रिस्ट्रिक्टेड चाहिए। सो इन पर्टिकुलर कंडीशंस जिसमें इन्फ्लामेशन है, जो कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल वॉल ऑलरेडी आपकी डैमेज है, ठीक है, पेप्टिक अल्सर्स में। सो इन दैट कंडीशंस में आपको क्या करना होगा कि ब्लैंड डाइट और फाइबर रिस्ट्रिक्टेड डाइट है, जो कि बेस्ड ऑन होती है ग्रेजुअल इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द फूड ईटन एट अ मील। ओके, सो अब हम देखेंगे कि अगर सिलेक्शन हमें करनी है स्टेज 1 पे और स्टेज 2 पे। बेवरेजेस में मिल्क इन ऑल फॉर्म्स ले सकते हैं। सीरियल्स में वाइट ब्रेड प्रोड्यूस इन द मेड बाय ऑफ द मैदा, इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ ईटन मील में, ठीक है। फाइबर इन फाइबर कंटेंट जो है वो सिलेक्शन फ्रॉम द स्टेज 1 एंड 2 में करनी पड़ेगी, ठीक है। सो यहाँ पे सीरियल्स, चीज, एग्स, फैट्स, फ्रूट्स में से आपको चीजें बताई हैं कि स्टेज 1 पे क्या करना है, ठीक है। मीट एंड फिश में से टेंडर और ग्राउंड बेक्ड, बॉइल्ड, रोस्टेड फॉर्म में लेनी है। सीजनिंग, सॉल्ट, शुगर, फ्लेवरिंग एक्सट्रैक्ट से कर सकते हो, लेकिन स्टेज 2 पे, स्टेज 1 एंड 2 पे ये कर सकते हैं। और स्टेज 3 है अगर, सो ऑल फूड मेंशन्ड अंडर दी स्टेज 1 एंड 2 और डीकैफिनेटेड कॉफी, प्लेंटी ऑफ मिल्क और वीक टी, मतलब बहुत बॉइल्ड नहीं, हल्की, ठीक है। फाइन होल व्हीट सीरियल्स एक्सेप्ट दी वंस विच आर वेरी फाइब्रस सच एज बाजरा वगैरह, ये सब नहीं लेना है। ऑल काइंड ऑफ चीज ले सकते हो, फ्राइड एग्स ले सकते हो, लेकिन रॉ एप्पल्स, चेरीज, peaches, pears, plums, stewed apricots and all, cinnamon, mace and mild herbs use की जा सकती हैं। Vegetables such as the lettuce, ठीक है, and some acidic foods according to the tolerance like tomatoes ले सकते हो, क्योंकि डिपेंड करता है कि कितना टॉलरेट कर पा रहा है। समटाइम्स टोमेटो खाने से ना बहुत एसिडिक प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है। सो दैट्स व्हाई वी हैव टू सी कि क्या लेंगे, और इंडिविजुअलिटी भी होती है। समटाइम्स ना एसिडिटी होती है, समटाइम्स दे पीपल दे थिंक दैट वी कैन हैव दिस थिंग, हम ये ले सकते हैं, और समटाइम्स दे पीपल दे डोंट हैव टू, ओके, वो नहीं लेते हैं। और थोड़ी सी भी एसिडिटी से, जैसे टोमेटो लेने से भी हो जाती है, ठीक है। अगर टॉलरेट कर सकते हैं देन यू कैन हैव इट, बट अगर थोड़े दिन हम ठीक कर लें उसके बाद लेना शुरू करें देन इट वुड बी गुड। ओके, सो उसके बाद है यस, एंड देन गाइडलाइन सजेस्टेड बाय दी, अच्छा ये डिफरेंट गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंगली, बट हमें सीधा सीधा पता चल गया कि ब्लैंड फूड लेना, मिर्च मसाले तेल नहीं लेना चाहिए, फाइब्रस फूड नहीं लेना है। सो वी कैन एक्चुअली हैव, पर एग्स वगैरह इसलिए सजेस्टेड होते हैं बिकॉज द प्रोटीन्स, क्योंकि अगर आप ब्लैंड फूड खा रहे हो ना, सो यस यस सुरेश कुमार जी, मेन मॉडर्न डे में एसिडिटी ऑफ स्ट्रेस से ही होती है, बिकॉज वेन एवर यू वुड बी हैविंग द स्ट्रेस, सो HCl सिक्रीट होता है बॉडी में बहुत ज्यादा, ठीक है। जितनी स्ट्रेस करते रहोगे तो HCl सिक्रीट होगा, उससे एसिडिटी बढ़ेगी, बिकॉज द अमाउंट ऑफ द HCl सिक्रीटेड फॉर द डाइजेशन is very mild, very less, and that would be actually excreted with the digestion, and then आपकी lining cover हो जाती है, नहीं होती है injured. But whenever you would be having the good amount of the food and then stress भी है, तो digestion patterns, hormones के working करने का pattern, enzymes के working करने का pattern properly नहीं रहता है, तो वो फिर indigestion होते हैं, indigestion के साथ HCl भी ज्यादा secrete होता है स्ट्रेस में, तो वो सब एग्जैजरेट हो जाती हैं चीजें इनसे, ठीक है। एंड अगर आपको प्रॉब्लम हो गई है अब स्मॉल इंटेस्टाइन एंड कोलोन में, हमने अभी अल्सर की बात की स्टमक में, ओके, कोलोन में, तो डिसऑर्डर किस तरह का है दैट वी हैव टू सी, दैट इरिटेबिलिटी है, कोलोन सिंड्रोम है, स्पास्टिक कोलोन है, तो इसमें क्या मेजर प्रॉब्लम पता क्या होगी, डिस्टर्बेंस इन द नॉर्मल मोबिलिटी ऑफ द कोलोन, आप बाउल मूवमेंट ठीक नहीं होगी। सो डाइटरी मैनेजमेंट, फूड इंक्रीज द इंटेस्टाइनल रेजिड्यूज, ठीक है। To aid to evacuation, fruits, vegetables, whole grains, cereals are useful in cases of the constipation, because इसमें constipation होगी तो हमें fibrous food पे जाना पड़ेगा, and in case of the recurrent diarrhea, so low fiber diet हो जाएगी। आप इन चीजों को समझिए, अगर तो constipation है then we have to take the fibrous food along with the lot of water content or any kind of the liquid also, but अगर आपका
फ्रीक्वेंट डायरिया हो गया, देन हमें सारा का सारा फाइबर वहीं रोक देना है, ठीक है। वॉमिट्स होती हैं, देन ऑल्सो यू हैव टू बी रिस्ट्रिक्टेड, एंड आपको इलेक्ट्रोलाइट्स पे आना पड़ेगा क्योंकि आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगा। सिंपल सी चीजें, और ब्लैंड फूड पे आना पड़ेगा फॉर द टाइम बीइंग, जब तक आप रिकवर नहीं करते हैं, ठीक है। एंड देन रीजनल एंट्राइटिस, जैसे क्रोन्स डिजीज होती है, तो इसमें क्या है कि इन्फ्लामेशन हो जाएगी चीफली टर्मिनल इलियम की, इंटेस्टाइन की, ठीक है। एंड वहां पे हमारा जो है आई मीन ज्यादा ऑब्स्ट्रक्शन होने के चांसेस होते हैं। सो आयरन, फोलिक एसिड एंड विटामिन B12 वुड बी सजेस्टेड, एंड नॉर्मल रेगुलर डाइट देनी है। एलिमिनेशन ऑफ ओनली फूड्स विच पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट, मतलब जो पेशेंट से टॉलरेट नहीं हो रहा है, इंडाइजेशन कर रहा है, उसको पसंद नहीं आ रहा, गैस्ट्रिक ट्रबल और भी बढ़ रही है, ओनली दैट फूड कैन बी अवॉइडेड, अदरवाइज यू कैन गिव। ओके, सो इस तरह की बहुत सारी देखो चीजें हैं, different kind of the diseases हैं, उसमें क्या करना है, this is the table, you can go through that. It's like अल्सरेटिव में तो बिल्कुल ही हाई प्रोटीन डाइट है, ठीक है, लो कैलोरीज होंगी, ब्लैंड डाइट होगी, लो फाइबर्स होंगे। एंड हेमोराइड में जैसे पाइल्स में बिल्कुल ही ब्लैंड फाइबर रिस्ट्रिक्टेड डाइट होगी, ठीक है, पाइल्स में, क्योंकि पाइल्स में कॉन्स्टिपेशन के बाद होती है, तो वी डोंट हैव टू गिव, बिकॉज वहां पे भी दिक्कत आ रही है। सो आपको मॉडिफिकेशंस की जरूरत पड़ती है जो आपकी इंजरी, क्योंकि पाइल्स में ना देखो, अब आप ये कहोगे कि पाइल्स कॉन्स्टिपेशन से शुरू होती है, लेकिन जब तक कॉन्स्टिपेशन है ओनली देन यू कैन गिव द फाइब्रस डाइट अलोंग विद द वाटर। बट जब पाइल्स बन गई है ना, पाइल्स का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी जब इतनी ज्यादा कॉन्स्टिपेशन है एंड देयर आर इंजरीज इन द कोलोन वाले सिस्टम में, एंड जब बाउल मूवमेंट्स होती हैं वो इतनी इंजरी कर देती हैं, तो ऑलरेडी लाइनिंग डिस्टर्ब हो गई है, फिर आपको फाइबर डाइट बंद कर देनी है, ठीक है, फिर आपको फाइबर डाइट बंद कर देनी है, बिकॉज वो फिर वाटर इनटेक एंड देन वो इलेक्ट्रोलाइट पे जाना पड़ेगा आपको, अदरवाइज वो दिक्कत नहीं ठीक होगी आपकी, ठीक है। सो आपको एवरी मूवमेंट पे आपको देखना है कि किस तरह की डाइट आपको देनी है, किस तरह की डाइट आपको नहीं देनी है। ईच एंड एवरी इंडिविजुअल इज अ डिफरेंट, इसीलिए पर्सनलाइज्ड वर्ड यूज किया जाता है फॉर ईच एंड एवरी पर्सन। आपको अलग स्टोरी सुननी है, अलग चीजें सुनी है, लाइकिंग डिसलाइकिंग्स भी देखनी है, क्योंकि पर्सन नहीं खाते हैं, फिर आपको चेंज भी करनी है, ठीक है। तो लाइकिंग, पर्सनल डिसलाइकिंग, लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग तो आपका पहला मुद्दा होता है, पहला पॉइंट होता है व्हेनेवर यू वुड बी गिविंग डाइट टू एनी पर्सन, ठीक है, क्योंकि आप दे रहे हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कह लो, बट वो पर्सन पसंद नहीं कर रहा है। पर्सनल डिसलाइकिंग, हम समटाइम्स हम ऐसी कोई चीज देते हैं जो उसने बचपन से कभी खाई ही नहीं, बचपन से कभी उसको पसंद ही नहीं आई, ठीक है, देन व्हाट यू डू, आप दे रहे हो उसको, आपको नहीं पता, तो लाइकिंग डिसलाइकिंग पूछे बगैर आप चीजें नहीं दोगे, क्योंकि वो नहीं खाएगा, नहीं खाएगा, बिकॉज दैट डजंट फील। आपको उसको मेंटली खुश भी करना है, उसको देखना है कि वो क्या चीजें खाता है और क्या चीजें नहीं खाता है, जो उसको पसंद है वो देना है, क्योंकि हमारे पास वैरायटी काइंड ऑफ अ फूड है, एक्सचेंज फूड्स हैं, डिफरेंट फूड ग्रुप्स हैं, हर चीज का एक ऑल्टरनेट हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। एक चीज किसी को पसंद नहीं है, वही चीजें हमारे पास ऑल्टरनेट चीजों में भी अवेलेबल होती हैं। एक तरह का प्रोटीन है, उसको दूसरी तरह के प्रोटीन में, एक तरह की चीज में भी नहीं खाता, हमें तो प्रोटीन देने से मतलब है ना, ठीक है। सो एक तरह का किसी फूड में नहीं है तो किसी और तरह के में दे दो, ठीक है। उसके बाद अगर आप मतलब उसके बाद एक्स्ट्रा और चीजें भी अगर देते हो, तो उसको आप फूड में, उसको अगर कोई, कई बार क्या होता है कि बहुत क्रेविंग भी होती है, तो उन क्रेविंग फूड्स का भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि पेशेंट्स दे, जिसको जिस चीज की क्रेविंग है ना, आप कितना भी रिस्ट्रिक्ट करोगे वो बीच में ले ही लेगा, वो चीट हो जाएगा और आपकी दिक्कत आ जाएगी, आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे, पेशेंट क्योर नहीं होगा। ये हम बात कर रहे हैं क्लिनिकल थेराप्यूटिक फूड्स की, क्लिनिकल एंड थेराप्यूटिक, क्योंकि इसमें आपको ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पेशेंट्स आर ऑलरेडी इन अ डिस्कम्फर्ट, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि समटाइम्स जो क्रोनिक चीजें हैं उसमें वो दैट पर्सन इज टेकिंग मेडिसिन ऑल्सो, एक्यूट चीजों में भी और क्रोनिक में भी, तो आपको साथ में डाइट देनी है, और ये कोशिश करो कि आपकी डाइट का इफेक्ट ज्यादा हो। डाइट के इफेक्ट ज्यादा होते हैं अगर केयरफुली प्लान करके दी जाती है और केयरफुली उसको बताया जाता है। फिर आपको उसमें ना लाइकिंग डिसलाइकिंग का बहुत ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि वो आपके रिजल्ट्स तभी आते हैं अगर आप उसको पसंद है और वो खाता है। अगर उसको पसंद नहीं आई और वो नहीं खा रहा है, फिर रिजल्ट्स नहीं आएंगे, फिर दिक्कत आएगी, ठीक है। सो आपको ये चीजें बहुत ध्यान से प्लान करनी है। एंड देन वेरी लो रेजिडुअल डाइट की अगर हम बात करें,
तो फूड्स परमिटेड बेवरेजेस में, ठीक है, क्या है, कॉफी इज लिमिटेड अमाउंट एंड फूड्स आर परमिटेड बेवरेजेस, मिल्क एंड नॉट परमिटेड, ठीक है। एंड ये सारे टेबल्स प्लीज आप, ये बहुत अच्छी चीजें दी हैं, इसको आप गो थ्रू कर सकते हो, सो दैट आई शुड नॉट वेस्ट टाइम, बिकॉज यू आर ग्रोन अप एंड यू कैन एक्चुअली गो थ्रू दीज बुक्स ऑल्सो। सो हाई फाइबर फूड्स में होल सीरियल पल्सेस आते हैं, फाइब्रस फ्रूट्स आते हैं, लोटस स्टेम एंड दी फाइब्रस वेजिटेबल्स आती हैं, ठीक है। सो आप इन पे कर सकते हो। अच्छा, अब हम न्यू सिस्टम पे जा रहे हैं, जैसे मेल एब्जॉर्प्शन सिंड्रोम्स है। अब हमें पता है कि हम कुछ खा अच्छा रहे हैं, एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है। सो व्हाट वी नीड टू डू एक्चुअली, हमें क्या करना है कि मेल एब्जॉर्प्शन को ठीक करने के लिए, कि एब्जॉर्प्शन प्रॉपरली हो, तो लार्ज आई मीन दिस इज कॉल्ड, मतलब इस तरह की जो चीजें हैं, मेल एब्जॉर्प्शन डिसऑर्डर्स सिंड्रोम्स होते हैं। सो इसमें हमने डाइटरी मॉडिफिकेशंस जो करनी है, इंक्रीज इन द एनर्जी एंड द प्रोटीन कंटेंट, क्योंकि मेल एब्जॉर्प्शन है ना, आप खा रहे हो और कौन सी ऐसी चीजें खा रहे हो जो डाइजेस्ट होके आपको एनर्जी नहीं दे रही है, तो आपको अब इंक्रीज इन एनर्जी एंड द प्रोटीन कंटेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटीन इन कंटेंट करोगे, सो दैट, और ऐसे प्रोटीन्स जो कि डाइजेस्ट हो और एनर्जी प्रोवाइड करवाएं, ठीक है। एलिमिनेशन ऑफ द स्पेसिफिक कार्ब्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स फ्रॉम विच द पेशेंट कैन नॉट टॉलरेट, ये लाइकिंग डिसलाइकिंग, और खाने के बाद भी अगर टॉलरेट नहीं कर रहा है तो। सो द मॉडिफिकेशन इन द टाइप ऑफ द फैट ऑल्सो, सो विटामिन्स एंड द मिनरल सप्लीमेंटेशन पे भी आपको काम करना है। सॉफ्ट एंड द फाइब्रस रिस्ट्रिक्टेड डाइट फॉर द पेशेंट्स एंड विद परसिस्टेंट डायरिया, ठीक है, इन पे भी काम करना है। एंड मैनेजमेंट ऑफ द डिजीज पे करने के लिए क्या है, इट हैज बीन शोन दैट गिविंग द फैट रिच medium chain triglycerides is useful for the certain malabsorption syndromes, because हम थोड़े lipids दे सकते हैं malabsorption में, ठीक है। malabsorption में TGs दे सकते हैं हम, ठीक है, और बहुत ज्यादा लंबे फैटी एसिड नहीं, 12 to 18 कार्बन एटम जो भी हैं आपके फैटी एसिड्स, ओके। सो वो जो फैट्स होते हैं ना, वो रैपिडली डाइजेस्ट हो जाते हैं इंटेस्टाइनल एंड पैनक्रियाटिक लाइपेजेस से, बिकॉज वी हैव द एंजाइम। सो ऐसा नहीं है कि वो डाइजेस्ट नहीं होंगे, बिकॉज वी हैव टू गिव देम एनर्जी टू, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स भी देने पड़ेंगे, बिकॉज लिपिड्स होते हैं ना, वो एक 1 किलो कैलोरी में 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरीज दे देते हैं एनर्जी, जबकि प्रोटीन्स एंड कार्ब्स कम देंगे। सो नाउ वी हैव टू गिव, बिकॉज मेल एब्जॉर्प्शन है, वीकनेस आ रही है क्योंकि खाना नहीं डाइजेस्ट हो रहा, सो वी हैव टू गिव वो वाले जो इजीली डाइजेस्ट हो जाते हैं। बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, कुछ दीजिए जो हो जाते हैं इजीली एब्जॉर्ब, बिकॉज पैनक्रियाटिक लाइपेज कैन वर्क ऑन दैट, ओके। सो देयर वुड बी दी ये कुछ चीजें हैं, जैसे इसमें फूड परमिटेड एंड नॉन परमिटेड है, राइस, कॉर्नफ्लोर, सोया प्रोडक्ट्स एंड वीट प्रोडक्ट्स, आटा, सूजी, मैदा, बिस्किट्स, ये नॉट नहीं परमिटेड हैं, जिसमें ज्यादा फाइब्रस होता है। लीन मीट, ठीक है, फिश, एग्स, स्वीट्स इन मैदा भी यूज जिसमें होता है, सो वी आर नॉट गिविंग। मैदा होता है ना, ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है डाइजेशन के लिए, सो वी हैव टू गिव दी फाइब्रस फूड्स जिससे हो, बट इसमें नहीं देना, क्योंकि दिस इज मेल एब्जॉर्प्शन, इट्स नॉट अ पैनक्रियाटाइटिस और गैस्ट्राइटिस, वो वाली डिजीज तो है नहीं, अल्सराइटिस, पेप्टिक अल्सर्स, ऐसा तो कुछ है नहीं है, ठीक है। सो शुगर एंड हनी इज परमिटेड, बट राई प्रोडक्ट्स दे आर नॉट परमिटेड, एंड द वेजिटेबल एंड द फ्रूट्स एंड द बटर, घी एंड ऑयल्स, they are actually permitted for these things. And sometimes we are suffering with the liver, gallbladder and the pancreatic disorders. So we begin with the disorders affecting the liver. अगर हम अब लिवर पे जाएं, बिकॉज आई टोल्ड यू, पहले हमने क्या डिस्कस किया, स्टमक, ठीक है, स्टमक में सारा खाना आ गया इसोफेगस के थ्रू, सो वी हैव स्टार्टेड विद द स्टमक, पहले इसोफेगस से, इसोफेगस की लाइनिंग डिस्टर्ब हुई, देन व्हाट वी हैव टू डू, एंड देन अब हमने स्टमक की बात की, स्टमक की लाइनिंग किस तरह से पेप्टिक अल्सर्स एंड और कुछ जो भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं वो हमने डिस्कस की। नाउ हम एसोसिएटेड ऑर्गन्स पे आए, गॉल ब्लैडर, लिवर एंड पैनक्रियास, ठीक है। अब हम लिवर की बात करेंगे, क्योंकि अगर इनमें भी कोई दिक्कत आती है, बाकी सब ठीक चल रहा है, इसोफेगस से खाना आ गया, स्टमक में आ गया, देन व्हाट वी हैव टू डू। अब अगर लिवर के साथ प्रॉब्लम आ जाए, पैनक्रियास के साथ प्रॉब्लम आ जाए, डिसऑर्डर्स, और गॉल ब्लैडर के साथ आ जाए, तो अब हमें पता है गॉल ब्लैडर से हमारे पास बाइल आएगा, पैनक्रियाटिक से हार्मोन्स आएंगे, लिवर से हमारे पास एंजाइम्स आएंगे। सो अगर हेपेटाइटिस हो जाए, सिरोसिस हो जाए, हेपेटिक कोमा हो जाए, मतलब लिवर बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा है,
सो ये स्मॉल प्रॉब्लम से शुरू होके फिर जाती है, एकदम से सबको प्रॉब्लम नहीं आती है, एकदम से कुछ नहीं होता, स्मॉल 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 दिक्कतें आती हैं, एंड देन दे टेक द बिगर आई मीन सीन बन जाता है। बट ऐसा नहीं है कि बॉडी आपकी आपको साइंस और सिम्टम्स नहीं दिखाती है व्हेनेवर यू वुड बी वर्किंग। सो आपको पता चलता रहता है साथ साथ कि कि थोड़ी दिक्कत आ रही है, थोड़ी इंडाइजेशन होगी, सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट ओनली। ये नहीं है कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है ओनली देन यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट, ओके। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है, सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट, ओके। सो अब हमने क्या करना है कि अगर मेजर डाइट थेरेपी लेनी पड़ेगी अगर लिवर की दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि प्रोटेक्शन करनी है हमने पेरेन्काइमल सेल्स एंड लिवर को भी प्रोटेक्ट करना है बाय यूजिंग द न्यूट्रिशनल डाइट। और हमारा एम्फेसिस किस पे होगा कि क्वालिटी प्रोटीन्स विच एक्चुअली हेल्प्स इन द टिश्यू रिपेयर, क्योंकि आपकी बॉडी बिल्डिंग किससे होती है, बॉडी सेल्स किससे होते हैं, रिपेयर के लिए कौन होता है आपके पास, प्रोटेक्शन के लिए कौन होता है, कार्ब्स नहीं होते हैं, लिपिड्स नहीं होते हैं, इट्स द प्रोटीन्स ओनली। whenever there would be any wear tear in any kind of the tissue of any kind of the organ and all, so you have to be given protein, good proteins, okay। so अगर उसको severely damage हो गया then also that could be handled by the protein load, even the tissue है ना, liver भी तो tissue है, ठीक है। हाई कार्बोहाइड्रेट टू इम्प्रूव द रिजर्व्स ऑफ द ग्लाइकोजन, अगर आपके रिजर्व्स खत्म हो गए, एनर्जी नहीं है, तो आपको कार्बोहाइड्रेट दी जाएगी सो दैट द over production of the glucose molecules could be stored as a glycogen, okay। so in case of the protein, glycogen has also the protective effect। so जब glycogen store होना शुरू हो जाएगा ना लिवर में, तो लिवर के पास भी एनर्जी एंड स्टोर्स मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, सो दैट वुड बी प्रोटेक्टिव। तो ग्लाइकोजन में भी प्रोटीन की तरह एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है। तो फैट को हम ज्यादातर रिस्ट्रिक्ट करते हैं whenever there would be the liver problem, so we actually going to restrict the लिपिड्स। हम प्रोटीन्स देंगे फॉर द वियर टियर एंड द ग्लूकोज देंगे, ज्यादा कार्ब रिच डाइट, सो दैट द ग्लाइकोजन वुड बी प्रोड्यूस्ड, क्योंकि ग्लाइकोजन तब प्रोड्यूस होता है व्हेनेवर यू ईट, ओके। ज्यादा ग्लूकोज घूमता रहता है बट आफ्टर सम टाइम जो जितना यूज होना है सो बाकी का ग्लूकोज एज ए ग्लाइकोजन स्टोर हो जाता है किसमें, लिवर में जाके। सो तो ग्लाइकोजन में भी एक प्रोटेक्टिव इफेक्ट है, सो दैट कुड बी यूज्ड टू सेव द लिवर, ओके, लिवर सेल्स एंड ऑल, ठीक है। सो लिवर की जो प्रॉब्लम्स हैं बेसिकली हेपेटाइटिस, दैट इज आल्सो इन्फेक्शन, हाई प्रोटीन मॉडरेट फैट एंड कार्ब डाइट वुड बी अप्रोप्रिएट, एंड सिरोसिस में क्या होता है, हाई प्रोटीन हाई कार्ब्स डाइट इज आल्सो सेटिस्फैक्टरी। मतलब लिवर में ज्यादातर लिवर के इन्फेक्शंस में आप हाई प्रोटीन तो दोगे तो हाई कार्ब्स कुड आल्सो बी, बट हाई लिपिड्स नहीं दे सकते हो आप, ठीक है। तो हेपेटिक कोमा की अगर हम बात करें तो उसमें रिडक्शन इन दी प्रोटीन इनटेक, बिकॉज अब लिवर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम से जा रहा है। हेपेटिक कोमा का मतलब यही होता है कि दैट इज नॉट अ वर्किंग कंडीशन, तो उसमें हमें प्रोटीन इनटेक को मिनिमम करना पड़ेगा, बिकॉज लिवर कैन नॉट कोप विद द प्रोडक्शन ऑफ द बाई प्रोडक्ट्स ऑफ द लिवर प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, ओके। सो बिकॉज जो बाई प्रोडक्ट्स बनेंगे दैट कुड बी एसिडिक ऑल्सो, यूरिया एंड अदर थिंग्स ऑल्सो, अमोनिया प्रोड्यूस होगा तो उसको वो नहीं कर सकता, एंड डेंजरस अमोनिया इनटू द यूरिया, ज्यादा यूरिया बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। अगर हेपेटिक कोमा की कंडीशंस में पहले थोड़ी हैं तो देन वी कैन एक्चुअली हैव दैट, ओके। सो ज्यादातर प्रोटीन, हाई प्रोटीन मॉडरेट फैट एंड हाई कार्ब डाइट एंड फैट डाइट रिस्ट्रिक्टेड, ये सब चलेगा इसमें। सो लिवर डिजीजेस जो है ना, दे आर एक्चुअली ट्रीटेड विद द हाई कार्ब हाई प्रोटीन एंड मॉडरेट डाइट्स फॉर द लो प्रोटीन्स एंड फैट डाइट्स, मतलब फैट को कम करना है, ठीक है। अच्छा, अब गॉल ब्लैडर और बिलियरी सिस्टम में अगर प्रॉब्लम आ जाए तो कोलेसिस्टाइटिस हो जाता है, ठीक है, और कोलेलिथियासिस हो जाता है, तो उसमें क्या है कि आपको गॉल ब्लैडर जो है वो इन्फ्लेम्ड इन्फेक्शन हो जाती है, इन्फ्लामेशन हो गई है, ठीक है। तो वो प्रॉपरली काम नहीं करेगा, ऑब्वियसली कोई बाइल सिक्रीट नहीं होगी, तो तब हम करेंगे लो फैट नॉन इरिटेटिंग डाइट्स आर रिकमेंडेड, ठीक है, जो गैस फॉर्मिंग होती हैं, ठीक है। प्रोटीन्स आर आल्सो गैस फॉर्मिंग होते हैं, ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड सच एज दी एक कॉलीफ्लावर, ड्राइड पीस, टर्निप्स, ये नहीं देने हैं, एंड सम पेशेंट्स में लो रेजिड्यू डाइट में भी प्रिस्क्राइब्ड, ओके। वेट कंट्रोल इज आल्सो एम्फेसाइज्ड, ओके। सो वेट कंट्रोल तो ऑब्वियसली हर डिजीज में हम आपको बताते हैं कि यस यू हैव टू। सो तो गॉल ब्लैडर विच इज मेंशन्ड अर्लियर, जैसे कोलेलिथियासिस है जिसमें गॉल स्टोन बन जाता है,
ठीक है, तो स्टोन के सच एज ए कोलेस्ट्रॉल, बाइल पिगमेंट्स, बाइल सॉल्ट्स एंड दी कैल्शियम प्रेसिपिटेट जिससे होते हों, ऐसी डाइट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी देयर आर स्टोन फॉर्मेशन ऑल्सो, ठीक है। सो अब है सिस्टिक फाइब्रोसिस अगर हो जाए, ठीक है, तो एबनॉर्मली थिक म्यूकस इज सिक्रेटेड बाय द एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, ऐसी डिजीजेस में, ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। सो दीज ये करते क्या है ना, ये जो म्यूकस होता है ना, ये डक्ट्स को, पैनक्रियास से जो हार्मोन सिक्रीट होने हैं ना बाइल में, पैनक्रियाटिक बाइल में, पैनक्रियाटिक जूसेस में, उसको ब्लॉक कर देगा, तो वहां से आपके पास आएगा नहीं, और डक्ट्स, पैनक्रियास की, लंग्स की और लिवर सबकी ब्लॉकेज हो जाएगी, तो उससे पैनक्रियाज में क्या फाइब्रोसिस हो जाएगा और सिस्ट फॉर्मेशन होनी शुरू हो जाएगी, बिकॉज उसका जो पैनक्रियाटिक जूसेस है दे आर नॉट गेटिंग सिक्रीटेड, ओके। तो इसमें क्या है कि डाइजेशन ऑफ द प्रोटीन, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स विल बी सीरियसली अफेक्टेड बिकॉज हार्मोन्स ही नहीं आ रहे हैं, while juicy pancreatic juicy secrete नहीं हो रहा, so serious loss of the sodium and the chloride can also be occurring through the sweating, okay। so what are the dietary remedies, क्या होंगी फिर, diet high in the caloric of the proteins and the moderation in the fat intake, हमें प्रोटीन फिर भी चाहिए हमें रिपेयर के लिए, ठीक है, बट फैट को हम रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है, ठीक है, और फैट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे तो टॉलरेंस ऑफ द फैट जो है वो एक्चुअली रिड्यूस हो जाती है, सो वी कैन नॉट एक्चुअली गिव मिनरल एंड विटामिन सप्लीमेंटेशंस कुड बी गिवन, सो दैट कि सोडियम एंड क्लोराइड की जो लॉस है उसको भी हम चेक केयर कर सकें, ठीक है। अब अगर हमारे पास डिजीजेस ऐसी हो जाती हैं कि जेनिटो यूरिनरी सिस्टम की है, सपोज डिसऑर्डर हो गया नेफ्राइटिस, मतलब किडनी में फर्स्ट लेवल का या सेकंड लेवल का, तो कंट्रोल प्रोटीन देने पड़ेंगे, बिकॉज किडनी में हमें प्रॉब्लम आ रही है, नेफ्राइटिस हो गया है, तो वी हैव टू गिव द रिस्ट्रिक्टेड प्रोटीन, सोडियम, पोटेशियम एंड फास्फोरस डाइट, एंड यूरिनरी कैल्कुलाई एंड रीनल कैल्कुलाई, मतलब किडनी स्टोन्स हो गए हैं तो, ठीक है, तो कैल्शियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट, एल्कलाइन एसिड एंड ऐश डाइट, डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्पोजिशन ऑफ द स्टोन, डिपेंड करता है कि कॉम्पोजिशन कैसी है, स्टोन बड़ा है, छोटा है, कितने मिलीमीटर का है, व्हाटएवर, तो इसके बेसिस पे कैल्शियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट तो हो ही जाएगी, ठीक है। एल्कलाइन और एसिडिक ऐश डाइट देनी पड़ेगी हमें। सो अगर एक्चुअली बेसिकली क्या है, नेफ्राइटिस जो है दो सिचुएशंस में होता है, जैसे टाइप 1 है तो आपको डिफ्यूज करना हो जाता है नेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, और इन्फ्लामेटरी है, ब्राइट्स डिजीज है, चिल्ड्रन में भी हो सकती है, यंग लोगों में भी। और टाइप 2 में क्या है, पेरेनकाइमेटस नेफ्राइटिस है, क्रोनिक है, विच इज सो मोस्टली इन अडल्ट्स होता है, कॉल्ड द नेफ्रोटिक सिंड्रोम। सो जो पहले वाला केस है टाइप 1, इसमें इन्फेक्शन हो जाती है किडनी की, स्टेप्टोकोकल, तो दिस इज एक्चुअली द बैक्टीरिया इन्फेक्शन। सो फिर यूरिन में एक्चुअली ब्लड आना शुरू हो जाता है, एल्ब्यूमिन और प्रोटीन्स आने शुरू हो जाते हैं, सो ब्लड यूरिया भी रेज हो जाता है, एंड प्लाज्मा प्रोटीन कंसंट्रेशन एक्चुअली फॉल हो जाती है फिर। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है कि सब्सटेंशियल लॉस ऑफ द एल्ब्यूमिन होता है यूरिन में ही, एंड देन नो सिग्निफिकेंट रिटेंशन ऑफ द यूरिया एंड द नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स। So type 1 nephritis would be volume of the urine excreted may be normal or slightly reduced भी हो सकता है। So इसमें टाइप 1 में हमें प्रोटीन रिड्यूस करना है, लेकिन टाइप 2 में हमें हाई प्रोटीन देना है। कार्ब्स जो देने हैं टाइप 1 में, वो अमाउंट ऑफ द सफिशिएंट प्रोवाइड बाय द मोस्ट ऑफ द एनर्जी, क्योंकि हमें एनर्जी प्रोवाइड करनी है तो हम कार्बोहाइड्रेट्स का अमाउंट ज्यादा देंगे, सफिशिएंट। लेकिन टाइप 2 में क्या, कार्बोहाइड्रेट सप्लाई मोस्ट ऑफ द एनर्जी, इसमें भी कार्ब्स दे सकते हैं। तो फैट इनटेक नॉर्मल टू फॉर्म द वेजिटेबल ऑयल्स, एंड यहाँ पे टाइप 2 में फैट इनटेक जो नॉर्मली आप स्लाइटली मोर कर देनी है वेजिटेबल ऑयल्स को इंक्लूड करके, पर यहाँ पे फ्लूइड इनटेक जो है वो ज्यादा देना है, ताकि वॉल्यूम जो यूरिन का एक्सक्रीटेड हो डेली। यहाँ पे भी फ्लूइड इनटेक जो है प्लस लॉस्ट इन द यूरिन के लिए दोनों में देना है। यहाँ पे सोडियम इनटेक को रिस्ट्रिक्ट करना है टू कंट्रोल द ओडीमा, क्योंकि टाइप 1 में एडीमा मतलब वाटर रिटेंशन ना हो, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड होगा, इसमें भी रिस्ट्रिक्टेड है, दोनों में। किडनी डिजीज में सोडियम इनटेक, प्रोटीन इनटेक शुड बी रिस्ट्रिक्टेड, कार्ब्स दे सकते हो, फैट वेजिटेबल ऑयल्स के दे सकते हो। फ्लूइड इनटेक आपको ज्यादा देना है सो दैट द यूरिनेशन में क्लीनिंग हो, ठीक है, यूरिनेशन ठीक से अगर चल रही है। डायलिसिस वाले की बात नहीं कर रही हूँ, वहां पे हमें फिर स्पेशली करवाना पड़ता है, बिकॉज ऑब्वियसली ये चीजें। सो फॉर टाइप 1 नेफ्राइटिस रिकमेंडेड दी हाई कार्ब्स,
low protein diet. For type 2 nephritis, rely on the high carbohydrate, high protein diet. ये दो चीजें. Type 1 high carb, low protein, पर type 2 high carb, high protein. बट दोनों में क्या है, सोडियम रिस्ट्रिक्ट करके थोड़ा सा प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स जरूर देने हैं. ठीक है. सो इसमें थोड़ी सी डाइट्स दी हुई हैं, बट ये ना थोड़ी बहुत मतलब मॉडिफिकेशंस दे आर नीडेड. ठीक है. और रीनल फेलियर में कौन से फिर हमने फूड प्रोडक्ट्स जो अवॉइड करने, एक्स्ट्रा मिल्क प्रोडक्ट्स, मीट, चिकन, नॉन वेजिटेरियंस, एंड पल्सेस, सीरियल्स, लेग्यूम्स, पीनट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स भी, कैश्यू नट्स एंड ऑल, केक, पेस्ट्री, जैम, जेलीज, स्क्वैशेस आर्टिफिशियली जो मेड होते हैं, वेजिटेबल रिच इन प्रोटीन्स एंड सोडियम, पोटेशियम एंड ड्राइड मीट एंड स्पिनच वी शुड नॉट गिव. ठीक है. सो ये आप ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से पता चलेगा. ठीक है. अब अगर हम बात करें डिजीजेस ऑफ द मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम्स, अगर हम देखें कि एर्थराइटिस है जो कि क्या है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट्स. ठीक है. सो सेवरल टाइप्स की होती है, बिगनिंग भी हो सकती है. ठीक है. मिडल भी, एंड यू कैन एक्चुअली से दैट दी बहुत एडवांस स्टेज पे भी हो सकती है एर्थराइटिस. सो डाइटरी जो पैटर्न्स हैं वो हमें एक तो सबसे पहले ओबेसिटी को एक्चुअली रिड्यूस करना है, बिकॉज जॉइंट पेन के साथ अगर पर्सन ओबीज भी है देन द सिचुएशन वुड बी मोर एग्जैजरेटेड. सो ओबेसिटी तो बहुत ही ज्यादा इसमें आई मीन डेंजरस है, बिकॉज द वेट, एक तो जॉइंट्स पहले ही काम नहीं कर रहे हैं, ऊपर से पर्सन ओबीज है तो मूवमेंट पे बहुत दिक्कत आती है. मूवमेंट में पहले ही दिक्कत है जॉइंट्स में, तो अगर ओबीज है, हाई वेट है तो भी दिक्कत आएगी. So objective of the diet therapy is to help the maintain the good nutritional status सबसे पहले. So low calories देनी है because obese ना हो, और पहले भी कम करना है. So ठीक है. और गाउट में भी क्या है, दिस इज द मेटाबॉलिक ओरिजिन है, रिजेंबलिंग द आर्थराइटिस की तरह ही होता है. ये भी जॉइंट पेन्स हैं, स्वोलन हो जाते हैं बिकॉज जॉइंट पेन्स एंड पेनफुल बहुत है इसमें क्योंकि accumulation of the uric acid हो जाती है. So uric acid is formed in the body, deposits in the joints, and certain nitrogenous जो compounds है ना, ये प्रोटीन से आते हैं, एक्चुअली प्यूरिन से आते हैं, excreted in the kidney. ठीक है. So uric acid is not excreted adequately. So gout में क्या accumulation होनी शुरू हो जाती है. So हमें ऐसा फूड नहीं देना है जिससे गाउट और मतलब accumulation हो, आई मीन ऐसे यूरिक एसिड की जॉइंट्स में. ठीक है. सो डाइटरी मैनेजमेंट ही है कि आपको गाउट में लो प्यूरिन डाइट देनी है. प्यूरिन्स एंड द पिरिमिडीन्स होते हैं ना, जो प्यूरिन की लो डाइट देनी है. सो नॉर्मल लेवल्स ऑफ द इंटरफेयर विद द बॉडीज एबिलिटी टू एक्सक्रीट द यूरिक एसिड प्रोडक्ट्स. एंड ओबीज पेशेंट को सबसे पहले वो वेट रिडक्शन वाली डाइट देनी ही है. सो जो फूड्स है ना हाई प्रोटीन कंटेंट ऑलवेज ओमिटेड, जिसमें फिश है, फिश लाइक सैल्मन एंड डिफरेंट काइंड ऑफ द फिशेस एंड द लिवर, किडनीज, स्वीट ब्रेड्स, मीट एक्सट्रैक्ट एंड द सूप्स, एंड दे वर एक्चुअली हैविंग द हाई प्यूरिन कंटेंट वाले ये फूड्स हैं. अच्छा, मॉडरेटली प्यूरिन कंटेंट किस में होता है? मीट में फिश है जो सेलफिश है, शेल फिशेस हैं, चिकन, बीन्स, ब्रिंजल्स, कॉलीफ्लावर, फ्रेश बीन्स, ग्रीन पीस, मशरूम, स्पिनच, चीकू, कस्टर्ड एप्पल इसमें. और फूड्स इन द निग्लिजिबल, जो आपको फिर भी थोड़ा चांस ले सकते हो देने का, जिसमें निग्लिजिबल है, ऑल वेजिटेबल एक्सेप्ट इन दी 2 जो हमने ये सेकंड वाले में करी है, एंड ऑल फ्रूट्स एक्सेप्ट इन 2 जो इसमें हमने सेकंड वाले में मॉडरेट प्यूरिन कंटेंट में जो करी है ना, सारी की सारी वेजिटेबल दे सकते हो जो इसमें लिखी हैं, और फ्रूट्स दे सकते हो इसमें लिखे हैं उसके अलावा. मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स दे सकते हो, एग्स है, फैट्स एंड अदर शुगर एंड स्वीट्स एंड सीरियल्स, दे आर एक्चुअली हैविंग द negligible purine content, so you can actually have the chance to take. So low purine, low fat, easily digestible diet with liberal fluid intake is a good for gout. Okay, so this was quite an important chapter which I have taught here. So अब एक और चैप्टर है which I should cover, बिकॉज ये कॉमन फूड बोर्न डिजीजेस में आ जाता है डायरिया, जो डायसेंट्री, कॉलेरा. ठीक है. ये डायरिया, डायसेंट्री एंड कॉलेरा जो है, सो ये बहुत दिक्कत करती है बिकॉज दिस इज विद द इंडाइजेशन आल्सो, एंड आप को फिर दिक्कत आती है डाइजेशन में, बिकॉज आपकी स्टमक अपसेट है तो यू डोंट फील गुड, एंड देन यू कैन नॉट हैव द, इसमें भी ब्लैंड डाइट्स पे आना ही आना पड़ेगा. डायरिया होता है, डायसेंट्री एंड कॉलेरा, दिस आर समथिंग
इन्फेक्शियस, ओके, इन्फेक्शन से, ठीक है। एंड इसका हमने देखना टाइप ऑफ द डायरिया इज आल्सो देयर, ओके। सो ईटिंग फूड दैट इज डर्टी और स्टेल, डर्टी वाटर, डर्टी हैंड्स एंड डर्टी वेज, ऑब्वियसली हमारी लापरवाही से होता है। डायरिया इज डेंजरस थ्रू बिकॉज वाटर लॉस होने के चांसेस बहुत होते हैं, डिहाइड्रेशन हो जाएगी एंड टाइमली अगर नहीं संभाला जाएगा, और बच्चों में बहुत होता है, और बच्चों में वाटर लॉस बहुत हो जाता है, ठीक है। और मतलब ड्राई हो जाती है स्किन, और वाटर क्योंकि लॉस हो रहा है थ्रू दी स्टूल्स आल्सो, एंड फिर टीयर्स नहीं आते हैं अगर बच्चा रोता भी है तो, टंग भी ड्राई है, थर्स्टी हमेशा क्योंकि वाटर लॉस हो रहा है बॉडी में, सॉफ्ट स्पॉट ऑन द बेबीज हेड गेट्स sunken एंड द स्किन loses its firmness, एक sluggish स्किन हो जाती है, looks wrinkled too and skin in pinch, तो वो वहीं पे फोल्डेड रह जाती है for few seconds, become hoarse, I mean हस्की सी वॉइस हो जाती है, पेंटिंग एंड ब्रीदिंग फास्ट हो जाती है, फेंट हो जाता है, कन्वर्जन्स भी आ सकती हैं, लिटल एंड नो यूरिन, बिकॉज वाटर जो लॉस हो रहा है ना वो तो स्टूल्स के थ्रू हो रहा है, डायरिया के थ्रू, तो देयर इज नो टीयर्स, देयर इज नो पर्सपिरेशन, देयर इज नो पासिंग ऑफ द यूरिन, एंड द स्टमक गेट डिस्टेंटेड स्पेशली इन अ मेल नरिश्ड चाइल्ड, ओके। सो डिजीजेज अब कॉज जो हो गई है इसको, अब टाइप ऑफ द डायरिया ऑल्सो एक्यूट है, क्रोनिक है। एक्यूट डायरिया में तो बहुत ही इमीडिएटली इतना वाटर लॉस हो जाता है, ठीक है, तो सडन ऑनसेट हो जाता है 3 to 7 days में, एंड देन अप टू 10 to 14 days तक भी रह सकता है। क्रोनिक डायरिया जो है वो 3 weeks और मोर भी चल सकता है इफ नॉट। कॉजेज क्या है, वायरसेस, बैक्टीरिया, ई कोलाई है, शिंगेले है, ठीक है, कैम्पिलोबैक्टर है, विब्रियो कोलेरी है, साल्मोनेला है, जियार्डिया है, अमीबाइसिस है, दीज आर दी कॉजेटिव एजेंट्स, ओके। सो इन्फेक्शन ही है ये, ठीक है। और ये होता कैसे है, डायरिया किसी भी एज पे हो सकता है, चिल्ड्रन में ज्यादा कॉमन है, किसी भी सेक्स में हो सकता है, मेल फीमेल्स एंड ऑल, मेल न्यूट्रिशन से भी हो सकता है, ठीक है। सोशल फैक्टर्स हैं, अकरेंस ऑफ द डायरिया इज नोन टू बी लो सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस, बिकॉज वहाँ पे पुअर सैनिटरी कंडीशंस होती हैं। किसी भी सीजन में हो सकता है, लेकिन रेनी सीजन में ज्यादा होता है, बिकॉज देयर वुड बी द क्लॉगिंग ऑफ द वाटर एंड द माइक्रोबैक्टीरियम आर आल्सो ग्रोइंग, ओके। सो रिवर स्ट्रीम्स में ज्यादा क्लॉगिंग हो जाती है, मॉस्किटोज हैं, बीज हैं, सो इन सीजन में ज्यादा होता है। incubation period of the and period of the communicability, न्यूमरस ऑर्गेनिजम्स जो ये होते हैं ना, इनकी एक देखो अपना एक कम्युनिकेशन, एक अपना इंक्यूबेशन पीरियड है, व्हेनेवर दे एंटर दे कंप्लीट देयर इंक्यूबेशन कंप्लीट, एंड तब तक ठीक नहीं होते हैं जब तक ये पूरा अपना अंदर पूरा फैला के करके उनकी जो लाइफ स्टाइल है उसका जो पीरियड एक खत्म नहीं हो जाता है। सो इंक्यूबेशन पीरियड तक आपको बहुत दिक्कत रहती है, ठीक है। उसके बाद जैसे जैसे वो कम होंगे एंड विद द इफेक्ट ऑफ द मेडिकेशन देन दे कैन एक्चुअली हैव, ठीक है। और इसमें मैनिफेस्टेशन डायरिया में कंप्लेंट्स क्या होती है, डायरिया, वॉमिटिंग, थर्स्ट और यूरिन, एंड देन ऑब्जर्वेशन कंडीशन, ईयर एंड माउथ टंग ब्रीदिंग पैटर्न्स फास्ट हो जाते हैं, माउथ टंग ड्राई रहते हैं, ठीक है। एंड कंट्रोल कैसे करना है, कंट्रोल मेजॉरिटी ऑफ द डेथ्स भी होती हैं क्योंकि वाटर लॉस है। ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शुरू कर देनी चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बिल्कुल खराब ना हो, और लिक्विड को मेंटेन रखना चाहिए क्योंकि लिक्विड लॉस हो रहा है, और एक अमाउंट के बाद जब लिक्विड बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, सो देन यू कैन फाइंड दैट that would be going to die, even the water loss से that could be, actually हम कहते हैं food poisoning हुई and then diarrhea हुई and then the person died, okay, this is because of the water loss, okay। So the treatment of the diarrheal diseases जो हमारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया हुआ, इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस टू इन्फेक्शन एंड रिडक्शन द ट्रांसमिशन ऑफ द पैथोजेनिक एजेंट्स एंड प्रिवेंशन ऑफ द डायरियल एपिडेमिक्स, ये सब के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है, योर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, that is working on that, and that is working on the below poverty line या slum areas जहाँ पे सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम्स होती हैं, the food they are eating that is not sanitized, और अच्छे पानी की नहीं है, प्योरीफाइड नहीं होता है, कोई क्लोरीनेटेड वाटर नहीं सप्लाई होता, सो इन चीज़ों से जो रीजंस हैं इनकी, ठीक है। और सबसे बड़ी तो आपकी डायरिया में सबसे पहले तो ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी होती है, बिकॉज मिनरल लॉस हो गया, सोडियम पोटेशियम लॉस हो रहे हैं, सो उसको आपको देना है तो उसका सबसे पहले आपको करना है। सो कॉम्पोजिशन कौन सी होती है ओरल रिहाइड्रेशन फ्लूइड की, सोडियम क्लोराइड 3.5 ग्राम है, सोडियम बाइकार्बोनेट 2.5 ग्राम है, पोटेशियम क्लोराइड 1.5 ग्राम, ग्लूकोज 20 ग्राम एंड पोर्टेबल वाटर उसमें डाल दो सारे में, सबको बना दो 1 लीटर, एंड देन थोड़ा थोड़ा देना।
ठीक है। एसेंशियल इलेक्ट्रोलाइट्स जिसमें होते हैं सोडियम 90, पोटेशियम 20, क्लोराइड 80, बाइकार्बोनेट 30 एंड ग्लूकोज 11.1। सो ये है एक, और मार्केटेड में भी मिलते हैं, ठीक है। ओआरएस सब्स्टिट्यूट, जेगरी, हनी वगैरह भी आप दे सकते हो, कोकोनट वाटर दे सकते हो, ठीक है। राइस कांजी, बटर मिल्क, बार्ले वाटर, ओके। शुगर फॉर्मूला भी दे सकते हो अगर होममेड आपको देना है, अगर आपके पास नहीं है। और सिंपली आपने क्या करना है, 100 ml वाटर लेके थोड़ा सा शुगर, पिंच ऑफ शुगर एंड पिंच ऑफ सॉल्ट डाल के आप बना सकते हो, जिसका आंसू जैसा टेस्ट होता है ना, तो वो आप 1 लीटर में डाल के थोड़ा सा वो बना के एंड स्लोली स्लोली आप दे सकते हो। और डिपेंड करता है कितना पानी आपको देना है, कितना ये ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी देनी है, डिपेंड करता है कि मॉडरेट डिहाइड्रेशन है और या फिर सीवियर डिहाइड्रेशन है। एंड नहीं तो अगर बहुत सीवियर हो जाती है देन यू हैव टू गिव द इंट्रावेनस फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन भी करनी पड़ती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल with this chapter. And then dysentery में भी ऐसी सी चीजें हैं, so this is also one of the thing because इनके different माइक्रोबैक्टीरियम है which are responsible for that, but इस सब में होता क्या है कि वाटर लॉस होता है। सबसे पहले आप मेन कॉज देखिए कि वाटर लॉस है, और हम सबसे पहले वाटर लॉस को बचाना है, क्योंकि एक वाटर लॉस ही है जो आपको जो आई मीन टुवर्ड्स फेटल होने के चांसेस ज्यादा होंगे, टुवर्ड्स फेटेलिटी बढ़ेगा चांसेस, ठीक है। सो अगर आप उसको वाटर लॉस को और वाटर को कंप्लीट आई मीन करके रखने की कोशिश करोगे कि उसको बॉडी को, तो बॉडी में जितने सिम्टम, और पता क्या है, एक बार जब बहुत एक्यूट हो जाता है ना, उसको लाना, और वाटर हम एकदम से ऐसे नहीं पी सकते हैं कि बहुत ले लिया और पी लिया, ठीक है। वो हमें बहुत स्लोली 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 देना होता है, ठीक है। समटाइम्स पेशेंट की इतनी कंडीशन है कि हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है, एंड देन जो ड्रिप लगती है नॉर्मल सेलाइन की, वो भी डिप 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 करके जाती है, तो एकदम से नहीं। और जब पीना है, अगर माइल्ड है, घर में है, देन यू हैव टू ड्रिंक, तो आपको फिर आपको बहुत ज्यादा नहीं है, यू हैव टू टेक इट वेरी स्लो अमाउंट्स, अदरवाइज वो वॉमिट और फिर वॉमिट आउट हो जाएगा और वो अंदर जाके भी दिक्कत क्रिएट करेगा। तो स्लोली स्लोली, सो रिकवर करने में, बिकॉज हम एकदम से नहीं ले सकते, स्लोली स्लोली लेना, तो रिकवर करने में भी जो टिश्यूज में, सेल्स में आपकी बॉडी में वाटर लॉस हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट लॉस हुआ है, उसकी वजह से आपको थोड़ी थोड़ी रिकवर करने में इट विल टेक टाइम। और वीकनेस होती है इस सबसे बहुत ज्यादा वीकनेस आती है, वाटर लॉस से बहुत ज्यादा वीकनेस आती है, स्किन एंड ऑल, वी हैव डिस्कस्ड ऑल द सिम्टम्स एंड ऑल, ओके। So I think this is the one. Next time we will be going to start with the DNHE3. आप प्लीज बुक पढ़िए, व्हाट्सएप पे आप मुझे क्वेश्चंस एंड ऑल आप पूछ सकते हैं, बिकॉज दिस इज द स्केड्यूल्ड क्लासेस व्हिच आई एम टेकिंग। सो इसमें दिक्कत आती है फिर, और क्योंकि जितना भी हो सका है मैंने आपको करवाया है DNHE 1 and 2, एंड नाउ वी आर गोइंग टू 3। सो देखो 100% सिलेबस कवर नहीं होता है इतनी क्लासेस में, बिकॉज ऑल द चैप्टर्स आई कैन नॉट जस्ट कवर, ओके। स्टिपुलेटेड क्लासेस एंड देन वी हैव टू डिस्कस अबाउट द थीसिस आल्सो, ठीक है। 4-5 क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे, एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन एक्चुअली आस्क मी, एंड जो ग्रुप है पर्सनली आल्सो यू कैन मैसेज मी, ठीक है। So I hope if there are questions then we can actually take, otherwise I want to close the class, okay. Yeah, okay, thank you. I suppose it's enough, you can go through now, you have a 1 week, almost 5-6 days होते हैं आपके पास, please go through। ऐसा नहीं है whenever we will be going to start with the next DNHE 1 or 2, so हमारा में DNHE 3, so I cannot just take the question of the DNHE 1 and 2, but ये usually होता है कि whenever we will be taking those classes, so हम वही questions discuss करते हैं, ठीक है। So keep on reading, okay, जितना पढ़ोगे, जितना एक्स्ट्रा मटेरियल पढ़ोगे, बिकॉज दिस इज नॉट द वेरी स्मॉल फील्ड। आप ये DNHE पढ़ रहे हो, उसके अलावा जितना मर्जी पढ़ो, जितनी अलग क्लासेस है, जहां जहां से नोट्स जो आप सीख सकते हो। सो इफ यू वांट टू मेक योरसेल्फ अ गुड न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन, व्हाटएवर यू वांट टू से टू योरसेल्फ, सो उसमें आप जितना पढ़ोगे, दुनिया जहान के कॉन्डिमेंट्स है, दुनिया जहान की, और आपको देखो इंडिया इज अ रिच फुल
full of and rich of so many things, and other countries are also there. Condiments हो गए हैं, proteins, different kind of carbs and other effects हैं. डेली की डेली इतनी रिसर्च हो रही है, कितनी डाइटरी पैटर्न्स पे रिसर्च हो रही है. सो यू कैन एक्चुअली सी कि आपको कैसे करना है. रोज किसी ना किसी का कोई ना कोई इफेक्ट नया पता चलता है कि इसका इस बीमारी में है. हल्दी के, स्पाइसेस, सिनेमन हो गया, और चीजें होगी, हमें पता ही चलती है ना कि ये चीज इसमें हेल्प करती है. एप्पल सीडर विनेगर है, उसके इतने बेनिफिट्स हैं. पहले कोई नहीं लेता था, अब लोग बहुत ज्यादा, मतलब काफी सालों से. बट हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. हर दिन आप कीप ऑन रीडिंग अनदर न्यूट्रिशियस बुक्स, कीप ऑन लर्निंग. अगर आपको इस फील्ड में जाना है और आपको एक्सेल करना है, जाना तो सभी को है, दैट्स व्हाई यू आर डूइंग. बट अगर एक्सेल करना है, सो दिस इज द गुड फील्ड. एंड देन बट कीप ऑन रीडिंग बिकॉज जितनी नॉलेज गेन होगी, एंड कीप ऑन राइटिंग, मेक योर नोट्स. ओके, सो डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट काइंड ऑफ द डाइट्स पे काम कीजिए, डिफरेंट टाइप ऑफ डाइटरी पैटर्न्स, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस पे. सिर्फ वेट लॉस पे नहीं, क्लिनिकल एंड थेराप्यूटिक डाइट्स पे भी काम कीजिए, बिकॉज दिस वी हैव स्टार्टेड इन द DNHE2. सो यहाँ पे भी बहुत है. ठीक है. सो मैडम हाँ जी, मैडम सुनिए. मैंने हिंदी सेशन लिया है. अभी असाइनमेंट लिखते हैं ना, तो जहाँ पर हम बार बार फैट बोलते हैं ना, जो हमारा रूटिंग है, तो वहां पर वसा वसा आता है. तो हाँ जी. ऐसे रूटिंग वर्ड इंग्लिश में लिखेंगे तो चलेगा हिंदी असाइनमेंट में? कोई बात नहीं, कोई बात ओके. और दूसरा, जैसे आपने बोला कि आप बाहर का स्टडी कर सकते हैं, तो नॉट नेसेसरी ना कि असाइनमेंट में या पेपर में हमें ये जो टर्मोलॉजी बुक्स में है आई इग्नू की, वही टर्मोलॉजी और वही वर्ड्स यूज करने हैं. नहीं, ऐसा नहीं है. आप कर सकते हैं अलग से, कई सारी चीजें ओ, हैं. ओके, थैंक यू. ओके. ओके जी, थैंक यू सो मच. ठीक है. इट्स अ वीकेंड, सो एंजॉय योर वीकेंड. वैसे तो संडे खत्म हो गया, बट स्टिल यू कैन एंजॉय. थैंक यू. थैंक यू मैम. थैंक यू. Thank you, ma'am. थैंक यू. हरीश कुमार जी का नाम आता है, आई डोंट नो. Thank you, ma'am. हाँ जी.